Good morning to all of you. Good morning. Good morning. Okay. So in last class we were discussing that what were the reasons for the dissatisfaction of sepoys. Clear? So now we are going to continue with the same topic. Reason for the dissatisfaction of sepoys. Dissatisfaction of various other classes we have already discussed. Now we are discussing reason for the dissatisfaction of sepoys. Okay, this is the topic. So we all know that discrimination in services was one of the most important reason for the dissatisfaction, right? So that is what sepoys. One reason is what discrimination in services. Discrimination is services. Clear? Sepoys were always given what? Subordinate offices. This is one reason. Sepoys were always given subordinate offices in military system of administration. Okay, always given subordinate offices. Example I have discussed in last class that no any Indian soldier can just rose above the office of Subedar rank in army. Okay, that is also a kind of discrimination. Clear? Now this, yes, yes. So this is what Subedar rank. Okay, so you cannot get appointed above this rank. It was not possible. Above this rank, it was not possible. It means this also shows this is a kind of discrimination in promotion. This is also a kind of discrimination in promotion. At one point of time, your promotion will be stopped. आप सूबेदार से ज़्यादा बड़ी रैंक नहीं पा सकते. और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, the second most important thing is discrimination in salaries and pensions. Clear? European soldiers given more salary, Indian soldiers given less salary. So discrimination in salaries and pensions. This is another reason for their dissatisfaction. Salaries and pensions. Okay. Here also they were discriminated. Clear? Plus the European officers were filled with what? Racial superiority mentality. Okay. So they will always consider Indian soldiers as inferiors. Okay. So obviously that will create another level of dissatisfaction among the soldiers because you are in a foreign land, you are not in your country. British are in a foreign land and here they are considering natives as the inferior. Okay, so obviously there will be some sort of self respect among the soldiers. So ये भी एक मुद्दा होगा. That right, next point, that the British officers were filled with were filled with the arrogance of racial superiority. The British officers were filled with arrogance of racial superiority, right? And they will consider Indian soldiers as inferior. They will consider Indian soldiers as inferior. And this is going to hurt the sentiments of Indian soldiers. This is going to hurt the sentiments of Indian soldiers. ठीक है ना? इससे इंडियन सोल्जर्स का सेंटिमेंट हर्ट होगा, राइट? सो देखो, इफ द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल सोल्जर्स विल बी हर्ट, ऑल इंडियन सोल्जर्स विल बी हर्ट, सो ऑब्वियसली दे विल कम टुगेदर. तो परेशान आप कर रहे हो और यूनिटी इनकी बढ़ेगी. मेरी बात समझ गए ना? इफ यू आर ट्रीटिंग देम ऑल अलाइक, इफ यू आर ह्यूमिलेटिंग देम, so obviously, okay, they will be dissatisfied. The another important point is that, okay, the Indian soldiers, okay, were also sent in. For example, I have told you earlier that British used Indian revenues, okay, in funding the wars inside India also, outside India also. So did they use only revenues or they used the soldiers also? They used the soldiers also. Got it? So it means if the British are fighting any war outside India, so they will ask Indian soldiers, okay, to come and join British Indian Army in that war also. And Indian soldiers were very dissatisfied by this. There are two reasons for this. First, they are not given any extra payment for this. Okay? And second point is what? Okay,
if they cross the sea, so this is against their religious sentiments. समुद्र देवता नाराज हो जाएंगे. Okay, and if they cross the sea, so the people in their villages will start doing social boycott of those people who have crossed the seas or the ocean. So there were two problems associated with this. एक क्या था, that you are not paid extra for the service, और दूसरा क्या था, religious concern. There are two concerns involved with this. So obviously they used to complain. Now in 1856, the British government introduced an act that is known as General Service Enlistment Act. ये prelims का question है. Okay, and by this act, now it was made compulsory. For example, if you are joining British Indian Army as a soldier, so you will have to, okay, sign an affidavit. ठीक है, you will have to just accept it. It is in terms and conditions that you will not deny to serve outside India. If you are asked to serve the British Indian Army outside India, you will have to go. आपको जाना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते. तो ये बात आपको सर्विस ज्वाइन करने से पहले अब आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती थी. ठीक है, आप बाद में कोई हंगामा नहीं कर सकते. तो लोग पहले अपोज तो कर ही रहे थे, बट जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट जो 1856 में आया, इसकी वजह से अब वो कंपलसरी पार्ट हो गया. ठीक है ना, कि ज्वाइन करने से पहले ही आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो. सो देयर आर टू इश्यूज इन्वॉल्वड हियर. फर्स्ट इज, okay, salary related issue, and second is their religious sentiments were also hurt. So write this point, that British Indian Army, British Indian Army, here we are talking about Indian soldiers. In British Indian Army, here we are talking about Indian soldiers, and we all know that British did what? British used economic resources of India, clear, plus they also used Indian soldiers. They also used Indian soldiers. They used economic resources of India to fund their war, to fund their war inside India also and outside India also, right? They used economic resources to fund their wars inside India also and outside India also. And here, second point is what? Okay, they are doing what? Okay, Indian soldiers, they were also utilized. They were also utilized, okay, for the expansion of British power. They were also utilized for the expansion of British power, again here, inside India as well as outside India. Inside India and outside India. They were also utilized for the expansion of British power inside India and outside India both. दोनों जगहों पे यूटिलाइज किया. एंड आउटसाइड इंडिया के केस में क्या होगा? आउटसाइड इंडिया, outside India, there are two issues here. First, okay, they are not paid extra amount for this. They are not paid extra amount for this. Army, British Indian Army or the government must pay this. And the second, religious sentiments issue. Religious sentiments issue. And what is the religious sentiment issue? So crossing oceans context. Crossing oceans context. Crossing oceans context. ठीक है, that our religion will become corrupt if we cross the ocean, and that's why the soldiers used to resist this. जब उनको भेजा जाता था तो वो resist करते थे, and this is an act of military indiscipline. So what British government will do in order to solve this problem? British government will introduce an act, and this is the prelims question. Write this: General Service Enlistment Act 1856. Highlight कर लेना, important. This is important. British government introduced an act, and this act was General Service Enlistment Act 1856. 1856. और ये कब है? ध्यान से देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक साल पहले, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. ओके, और इससे क्या हो रहा है? ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट बिफोर joining British Indian Army, before joining British Indian Army, Indian soldiers, before joining British Indian Army, Indian soldiers will have to give an undertaking. Okay, will have to give an undertaking. And what is written in this undertaking? That they will not deny
they will not deny to serve British government outside India also. They were not denied to serve British government outside India also. It means that it was made compulsory. इसका मतलब यही है कि अगर आप ज्वाइन करने से पहले ये अंडरटेकिंग नहीं देते हो तो आपको ज्वाइनिंग ही नहीं मिलेगी. So it has been made compulsory, in other words. Got it? That is the another important thing. Okay, it is related to, this act will be related to religious sentiment also. Now, the next important point is that we all know that in British Indian Army, since British does not believe in this caste-based discrimination, they will reject, British will reject this caste-based discrimination. उनका क्या है? Racial discrimination. That Europeans and Indians, दो कैटेगरी बना रखी है, ठीक है ना? Europeans are superior, Indians are inferior. And here what is happening? British are not accepting this caste-based discrimination. So in British Indian Army, you can say the members of Indian Army who were the Indian soldiers, right? It does not matter that you belong to the upper caste or lower caste. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. You all will be treated equally. साथ रहना, इंटर डाइनिंग, ये सब होगा. इंटर डाइनिंग भी होगा, मैस होगा, वहां पे आपको क्या करना होगा? इंटर डाइनिंग भी करना होगा. ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली. नाउ दिस विल क्रिएट सम डिससेटिस्फेक्शन इन द माइंड्स ऑफ अपर क्लास रिक्रूट्स. ठीक है, कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इज्जत नहीं मिल रही है, तो नाराज हो जाएंगे. मेरी बात समझ गए ना? बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. वो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? कुछ गेस कर पा रहे हो? नेशनलिज्म. एग्जैक्टली. देखो, what will happen? Obviously, some upper class recruits are not happy, but still, what is being promoted? क्या हो रहा है? Okay, people are living together. Okay, gradually it will also help in, okay, promotion of nationalism. ठीक है ना? इससे भी nationalism आएगा, ये भी समझने वाली बात है. Okay, this is one point. Okay, so these are some of the issues. One issue was Christian missionary. ये भी एक बड़ा issue था. You can write this point also. Christian missionaries. When Christian missionaries were allowed to come by Charter Act of 1813, I have already discussed with you, उनका फोकस सबसे ज्यादा किन दो एरियाज में है? Other areas are also there, but the most focused area is, you all know, one is tribal area, on second है military cantonment areas. military cantonment में Indian soldiers है, majority of the soldiers are Indian soldiers. तो वहां जाके अगर आप उपदेश दोगे और इंडियन सोल्जर्स प्रभाव में आ गए, तो बताओ, विल इट बी हेल्पफुल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? यस. अगर आपने इंडियन सोल्जर्स को कल्चरली सब्जुगेट कर दिया, उनका ब्रेन वॉश कर दिया, तो आपके लिए इंडिया में आपकी प्रेजेंस क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी. राइट? दिस इज वन रीजन. ओके, नाउ व्हाट इज द अनदर रीजन? I have already discussed with you all the peasant concerns. Will they directly affect the sepoys also? Yes, because the peasant sepoys are what? Peasant in uniform. So write this. The issues of peasant, all the issues of peasant concern and distress, all the issues of peasant concerns and distress will directly affect the Indian soldiers, Indian sepoys, all will do what? It will directly affect Indian sepoys. It directly affect करेगा because Indian sepoys are peasants in uniform. They are what? Peasants in uniform. Indian sepoys are peasants in uniform. It will directly affect. Okay, that is one most important point. Okay, right? Now, one issue that becomes the immediate issue due to which the revolt start, we all know, was the issue of greased cartridges. ये बाद में भी डिस्कस करूंगा, बट ये वाला इशू भी यहाँ पे इंक्लूड कर लो. राइट? इंक्लूड दिस पॉइंट also the issue of greased cartridges. The issue of greased cartridges, that is a most important issue here. That is also called immediate cause. That is also called immediate cause, जिससे रिवोल्ट तुरंत स्टार्ट हो गया. And that is what? Issue of greased cartridges. चर्बी वाला कारतूस. Issue of greased cartridges.
that is known as चर्बी वाला कारतूस. Issue of grease cartridges. Okay, it is immediate reason. Immediate reason का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, जिसकी वजह से रिवोल्ट शुरू हो गया. एंड अदर रीजंस आर द मेन रीजंस. ठीक है ना. बैरकपुर बताऊंगा जब मैं रिवोल्ट ऑफ 1847 अलग से बताऊंगा. ठीक है, दैट इज द कोर्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1847. उसको ऐसे समझा जाता है. जैसे एक ऑप्शनल का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था ना कि कोर्स ऑफ वॉर, जैसे इस बार एंशिएंट में एक ऑप्शनल के पेपर में मैंने डाला है और वो क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, आंसर लिखा उसका ऑप्शनल वाले का. आई हैव शेयर्ड वन वीडियो ऑन यूट्यूब. ठीक है, और आज मैं सुबह उठ के देखा तो उस पर भी 3000 व्यू हो गया है और 4500 आवर्स उसको लोगों ने देखा है, जबकि अभी पूरा ऑप्शनल मैंने डाला ही नहीं है. ठीक है, तो देर आर आई होप देर आर 6 क्वेश्चंस इन दैट. मैपिंग वाला तो कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट read all those 6 questions, watch the video and make a notes of all those 6 questions. ठीक है, उसमें कुछ प्रीलिम्स के भी एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किए हैं, तो होपफुली आपके काम वो आ जाएगा प्रीलिम्स में या मेंस में, ये ध्यान रखना. ठीक है ना. ठीक है, क्योंकि आप प्रीलिम्स में भी देखो वैदिक कल्चर, सॉरी जीएस मेंस में एक क्वेश्चन था वैदिक कल्चर से, ट्रांजिशन फेज से. ऑप्शनल में भी था वैदिक कल्चर से, ट्रांजिशन फेज से. तो थोड़ा इस रिलेशन को आपको पकड़ना होगा, लिंकेजेस को पकड़ना होगा. दिस विल मेक योर टास्क इजियर. गॉट इट. कई बार इस तरह से हमें बेनिफिट हो जाता है. ठीक है, रैंडम डिस्कशन से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं रेंज पे. चलिए, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज इशू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस. तो देखो, प्रीवियसली द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाज यूजिंग अ राइफल एंड द नेम ऑफ दैट राइफल वाज ब्राउन बेस राइफल. ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाज यूजिंग अ राइफल और उसका नाम क्या है, ब्राउन बेस राइफल. क्लियर. एंड they replaced this rifle with a new rifle. Obviously it was a part of, okay, military, you can say that, upgradation. ठीक है, समय समय पे अपग्रेडेशन होता रहता है. So they will bring a new rifle and this is new infield rifle. This is the new infield rifle. New infield rifle. ठीक है, and इस राइफल में the cartridges which were used, ठीक है, these are the cartridges जो गोलियां होती हैं, right, they were covered, कवर होता था. एंड यू विल हैव टू बाइट इट ऑफ बिफोर यूजिंग दैट कार्ट्रिज. जैसे चॉकलेट, हम हमारे पास टॉफी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दांत से ही फाड़ते हैं. वो बचपन वाली आदत अभी गई नहीं. ठीक है, तो इन द सेम वे यू, इफ यू हैव टू यूज द कार्ट्रिजेस, यू विल हैव टू बाइट इट ऑफ. ओके, एंड सडनली, ओके, rumor will spread. Okay, it was rumor or a reality. ठीक है, इसको लेके भी बहुत सारे लोग सफाई भी देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बट वट एवर बी द इशू हियर, दैट अ र्यूमर विल फ्लोट अमंग द सोल्जर्स दैट दिस ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस, दिस इज ग्रीज्ड, चर्बी वाला कारतूस है, तो इट इज ग्रीज्ड विथ एनिमल फैट. एंड द फैट ऑफ विच एनिमल्स हैव बीन यूज्ड, सो द आंसर वाज काऊ एंड पिग. ठीक है, तो इससे कौन नाराज हो गया, हिंदू भी नाराज हो गया, मुस्लिम भी नाराज हो गए. जब दोनों एक दुश्मन से नाराज हो गए तो दोनों में क्या हो जाएगी, यूनिटी. ओके, देखो हम सबका अगर एनिमी कॉमन हो जाए तो अचानक क्या आ जाएगी, यूनिटी आ जाएगी. द सेम विल हैपन. सो इशू ऑफ ग्रीज कार्ट्रिजेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. सो राइट दिस, न्यू एल्फिन राइफल, राइट, ग्रीज कार्ट्रिजेस, राइट, अ rumor spread. Okay, and according to this grease cartridge here, animal fats have been used. Animal fats have been used. यहाँ पे क्या यूज था, एनिमल फैट्स हैव बीन यूज्ड. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना काउ एंड पिग, काउ एंड पिग. तो हियर व्हाट वी सी दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ बिकेम डिससेटिस्फाइड. दोनों डिससेटिस्फाई हो गए. गॉट इट. दिस इज आल्सो वन रीजन. नाउ you have understood the dissatisfaction of various classes. Artisans, अच्छा, merchants and traders, will they be dissatisfied, yes or no? Yes. Yes sir. Because अब वो ट्रेड कर रहे हैं बट उनका बॉस हमेशा कौन है, ट्रेड एंड कॉमर्स में बॉस हमेशा कौन है, ब्रिटिश. गॉट इट. नाउ यू विल हैव टू वर्क अंडर द ब्रिटिश. सो इन योर कंट्री इफ यू आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश, सो दिस इज नॉट ओके, गुड. ओके, ऑब्वियसली दिस विल हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड ऑफ द पीपल. और जो स्मॉलर अर्बन सेंटर्स थे विच वर रिच अर्बन सेंटर्स इन द मिडिवल टाइम्स, उनका धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रेक डाउन होने लगा, कोलैप्स होने लगा.
गॉट इट? ओके, देखो, अर्बन सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया, इन मिडिवल इंडिया, पोर्ट सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया, इन मिडिवल इंडिया। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। एजुकेशनल सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया, इन मिडिवल इंडिया। State in development of state or state formation and kingship in ancient India, in medieval India. Status of women in ancient India, in medieval India. Got it? Okay. Literature, all important literature in ancient India, in medieval India. इन सब पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है एंड आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वन बाय वन। लिखा उस पे ऑप्शनल रहेगा, लेकिन राज की बात बता रहा हूँ, ठीक है? किसको देखना है? आप लोगों को देखना है, ठीक है? वहां पे ऑप्शनली लिखा रहेगा, बट आप लोग देखोगे और सीधा सीधा उस बेनिफिट का, उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में होने वाला है। गॉट इट? बिकॉज आई विल डिस्कस इन अ स्टोरी फॉर्मेट, आई विल नॉट राइट ओनली फैक्ट्स, तो वो चीजें आपको याद होने लगेगी। गॉट इट? ओके, एंड यू आर गोइंग टू गेट एडवांटेज फ्रॉम दिस। पेपर उठा के देख लो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जीएस तो छोड़ ही दो, ऑप्शनल तक में वो सोशल, कल्चरल और रिलीजियस, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इससे अलग जा ही नहीं रहा है। सो दिस इज अ मैसेज, ठीक है, कि हमें कैसे अपनी तैयारी को दिशा देनी है। ठीक है ना आकाश? गॉट इट? मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गया ना? एनसीईआरटी के चैप्टर्स पता है आपको, मैंने क्लास में बताया थे एमसी करवाते वक्त। वो सारे चैप्टर्स को बार बार पढ़ो, उसकी एक एक फैक्ट्स को याद करो, इंफॉर्मेशन को याद करो, और आप देखो कि मुश्किल से 3-4 चैप्टर्स पे आपकी कमांड अच्छी होगी और एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना? तो इतना काम करना है, ठीक है? चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा डिवीजन करके। जैसे हमने पीजेंट पढ़ा, ट्राइबल पढ़ा, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे वन क्लासिफिकेशन वाज सिविल रिबेलियन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सिविल रिबेलियन? बताया था मैंने कल की क्लास में। क्या है सिविल रिबेलियन, बताओ, याद आ रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, एग्जैक्टली, that is civil rebellion. Now we will discuss some example of civil rebellion, we will discuss some example of peasant rebellion, we will discuss some example of tribal revolt। और जहां मैं जितना डिस्कस करूंगा उसके बाद थोड़ा स्पेस अपने नोट्स में छोड़ देना, ताकि अगर आपको कभी पढ़ते हुए कोई नया मिले ना इंफॉर्मेशन, तो इसी नोट्स में क्या करोगे, ऐड कर लोगे। गॉट इट? तो ये आपका कंप्लीट नोट्स हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सिविल रिबेलियन। सबसे पहले इसी की बात हमने की थी, सो लेट्स स्टार्ट विथ सिविल रिबेलियन। सो नाउ वी विल डिस्कस some example of civil rebellion। You already know the meaning of civil rebellions। civil rebellions का मतलब तो हमें पता ही है, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, वन मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हियर इज रिवोल्ट ऑफ वेलू थम्पी। राइट दिस most popular example, this is what, revolt of, right, revolt of Veluthampi, Veluthampi, revolt of Veluthampi। गॉट इट? ईयर है 1805, 1809। अब यहां से सारे ईयर्स आपको याद नहीं करने। वेलुथम्पी का रिवोल्ट कब है? इट्स प्री 1857 रिवोल्ट। ऐसे याद कर लो, ट्रिक। एग्जाम में कोई 2-3 पूछेंगे, 1-2 पॉपुलर होता है, और अगर आपने ये ट्रिक अप्लाई कर लिया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वेलुथम्पी का रिवोल्ट क्या है? इट्स प्री 1857 रिवोल्ट। ओके, नाउ हु वाज वेलुथम्पी? सो वेलुथम्पी वाज दीवान। Diwan means minister। Veluthampi was Diwan or minister of Travancore रियासत। Travancore रियासत, Travancore रियासत। Travancore के बारे में हमने पढ़ा था, इंडिया इन 18th सेंचुरी, अगर आपको याद हो तो। Travancore रियासत, सो ही वाज द दीवान ऑफ Travancore रियासत। देखो प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर? सो द प्रॉब्लम वाज, वेलेस्ली कब आया था? यू ऑल नो दिस। वेलेस्ली 1798, याद है ना? और वेलेस्ली ने कौन सी सिस्टम लाई थी? सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सो द सेम सिस्टम वाज अप्लाइड ऑन त्रावणकोर रियासत। सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज अप्लाइड ऑन त्रावणकोर रियासत। त्रावणकोर रियासत पे आ गया सब्सिडियरी अलायंस। एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस? इस सब्सिडियरी अलायंस का इंपैक्ट क्या होने वाला है त्रावणकोर रियासत में? सो द आंसर इज वेरी क्लियर एंड सिंपल। ओके, a British resident will be kept here, and now this British resident will do what? Excessive interference, excessive interference।
इन इंटरनल अफेयर्स, ये क्या करेगा, इंटरनल अफेयर्स में एक्सेसिव इंटरफेरेंस करेगा, गॉट इट, excessive interference in internal affairs. Okay, now financial burden on the state, because we all know that British main purpose was to extract more and more money from the state. Financial burden on state, and Veluthampi will do what? Veluthampi will oppose it, and when Veluthampi will oppose it, the British resident will demand कि किसको हटा देना चाहिए, वेलुथम्पी को हटाओ दीवान के ऑफिस से। इससे क्या होगा, right? After this, okay, what will happen, this divan or the minister will start a, you can say that, will do a revolt against the British. And who will support this divan? इस दीवान को support कौन करेगा, वहां के local soldiers, nobility class, they will support the divan. Clear? This will happen. Okay, finally what will happen, 1805, okay, this Travancore was annexed to British Empire. 1809, Diwan Veluthampi, okay, he died, he was killed. Okay, now in this entire episode, पूरे facts आपको नहीं याद रखने हैं. What is the concept here? The revolt of Diwan Veluthampi is what? A kind of civil rebellion. Civil rebellion है. Here, the dissatisfaction is from British rule. Dissatisfaction किससे है? British rule से. क्यों है ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फेक्शन? तो ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज के कारण डिससेटिस्फेक्शन। वो पॉलिसीज क्या है? सब्सिडी अलायंस, जबरदस्ती ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठा दिया, उससे स्टेट से पैसे खींचने लगे। दीवान स्मार्ट था, दीवान ने अपोज किया, तो डिमांड हुई कि दीवान को ही हटा दो, और उसके बाद दीवान रिवोल्ट करेगा एंड विल फाइट विद ब्रिटिश। दिस काइंड ऑफ रिवोल्ट इज नोन एज सिविल रिबेलियन। याद रहेगा ना आपको? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ civil rebellion. Now we are taking second example, right? Second example that is also very interesting, right? Paika revolt or Pikes revolt in Odisha. The second example is Paika revolt or Pikes revolt. Pikes revolt in Odisha. पाइका भी लिखा रहता है और पाइक्स भी लिखा रहता है। पाइक्स रिवोल्ट इन उड़ीसा। जो ईयर्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताऊंगा, सारे ईयर्स नहीं याद रखने हैं, ठीक है ना? सारे ईयर्स याद ही नहीं रखने, बट एक आइडिया होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो प्री 1857 रिवोल्ट। ये कब है? 1804 टू 1806, पाइक्स उड़ीसा, ठीक है। ये क्या होता है, देखो फिर कहानी क्या है। ब्रिटिश ने क्या किया, 1803 was the year, 1803 was the year, okay, when British occupied or established their control over Odisha, established their control over Odisha, उड़ीसा पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेंगे। गॉट इट? ओके, नाउ देखो, व्हेन ब्रिटिश कंट्रोल विल बी स्टैब्लिश्ड, व्हाट विल हैपन? दे विल चेंज द एंटायर सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम को बदलेंगे। मेरी बात समझ गया ना? लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी बदलाव कर सकते हैं, लैंड ओनरशिप राइट्स को भी बदल सकते हैं। ओके, सो दिस रिवोल्ट इज लाइक दिस, दैट फर्स्ट, ओके, राजा ऑफ खुर्दा, दैट इज अ प्रोविंस इन उड़ीसा, उस राजा ने रिवोल्ट किया। गॉट इट? एंड देन राइट दिस, फर्स्ट रूलर ऑफ, ओके, और राजा ऑफ खुर्दा, राजा ऑफ खुर्दा डू रिवोल्ट और स्टार्ट रिवोल्ट, do revolt or start revolt, and later this ruler was supported and joined by, this ruler was supported and joined by Paikas or Pikes. Later this ruler was supported and joined by Pikes or Paikas, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ये पाइक्स कौन थे? गॉट इट? तो these Pikes were, you can say, a class of warriors. You can say that they were also a class of feudal lords or zamindars. Okay, king has done what? King has given this class, Pikes class, rent free land, जिससे लगान नहीं जाता था राजा को, रेंट फ्री लैंड दे रखा था पाइक्स को। और पाइक्स उसके बदले में क्या करते थे? व्हेनेवर द किंग नीडेड देयर हेल्प एंड सपोर्ट, दे विल प्रोवाइड देयर हेल्प एंड सपोर्ट। ध्यान से समझना इस बात को। अब जैसे ही वो स्टेट और वो एरिया ब्रिटिश कंट्रोल में आएगा, okay, so do you think that these people will enjoy their rights, rent free land?
क्या एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। ब्रिटिश का टारगेट क्या है? कलेक्टिंग मोर एंड मोर रेंट, यहां तक कि वो ट्राइबल एरियाज से भी रेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटिश, as if British domination and control will be established over one area and the rights of a king is affected, at the same time the rights of the dependent class is also affected, the rights of paikas is also affected, the rights of descendants is also affected. So paikas came and supported the ruler. हाँ बिल्कुल पिंडारीज जैसा कुछ है। मेरी बात समझ गया ना? तो क्या इसको हम सिविल रिबेलियन की कैटेगरी में रखेंगे? आपका क्या ओपिनियन है? यस और नो? यस, वी कैन कीप इट इन सिविल रिबेलियन, क्योंकि यहाँ पे अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी चेंज होगी जिससे पाइकास का सीधा सीधा इंटरेस्ट अफेक्टेड होगा। और मैंने बताया था सिविल रिबेलियन के डेफिनेशन में दैट दिस रिबेलियन मींस व्हाट? ओके, द रूलर and the nobility class or those class, right, which has been supported by the ruler, they will come and oppose it. ठीक है ना? That is one part. Okay, now I am coming to the third example. मेरा पर्पस क्या है? आप सिविल रिबेलियन के कॉन्सेप्ट को समझो। If in GS this question is asked that what do you mean by civil rebellions, okay, in British India, give some examples और इस तरह से, तो now you can easily write ना, अगर आप समझे रहोगे तो। ठीक है, तो फैक्ट सारे नहीं याद करने हैं। Here you need to remember the name of the revolts to cite it as example in your answer. ठीक है ना? अपने आंसर में क्या करना है? एग्जाम्पल। देखो इस एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज है राइटिंग आंसर इन वर्ड लिमिट। ठीक है ना? मैं यूट्यूब वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत सारे मतलब टीचर्स को भी देखता हूँ, नॉलेजेबल टीचर्स है, दे मेक वीडियोस, बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि जब हम सॉल्यूशन वीडियो डिस्कस कर रहे हैं तो आंसर डिस्कस करते करते 150 वर्ड के आंसर में वो 600-700 वर्ड्स का कंटेंट बता देते हैं। ठीक है, एक दो बार मैंने बैठ के देखा भी। ठीक है, मेरा ये कहना है कि इफ यू आर डिस्कसिंग आंसर, और अगर आप भी सीरियसली जेन्युइनली अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 150 वर्ड्स के आंसर में आपका कंटेंट कितना होना चाहिए? वही होना चाहिए ना। फिर तो कहानी वही हो गई, एग्जाम में 150 पूछ रहा है और आप फिर बैठ के कहानी सुन रहे हो 700 वर्ड्स 800 वर्ड्स, तो वो ट्रैप जोन से बाहर ही नहीं निकल पाओ। ठीक है, इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा? शॉर्ट, कंसाइज, कीवर्ड्स यूज करो, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखो, स्केच यूज करो, डायग्राम यूज करो। देखने में वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट वो आंसर हमेशा क्या होगा? मार्क्स फेचिंग होगा। मेरी बात समझ गया ना? ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, राइट, रिवोल्ट ऑफ रामोसीज। रिवोल्ट ऑफ रामोसिस, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिविल रिवेलियन। अच्छा, सिविल के साथ साथ क्या पीजेंट रिवोल्ट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं? जैसे इसके पहले जो एग्जाम्पल था, जो ये वाला हमने डिस्कस किया, इसमें पीजेंट इशू भी तो इन्वॉल्व है। पाइक, लैंड रेवेन्यू, पीजेंट इशू इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बट दिस मेनली अ सिविल रिवेलियन। पीजेंट रिवेलियन की भी कैटेगरी में हम रख सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नाउ रिवोल्ट ऑफ, राइट, रामोसिस, revolt of Ramosis. Ramosis. This is also very interesting. Again, it's a pre-1857 revolt. The time was 1820s. ऐसे लिख लो, 1820s was the time period. Revolt of Ramosis. अब देखो क्या है. Again, Ramosis is a group, okay, which was, right, this group which was serving Maratha Peshwas. जो क्या करता था? मराठा पेशवा की सेवा करता था। गॉट इट? दे वर सर्विंग मराठा पेशवास एज मतलब ये कह सकते हो कि दे वर लाइक लोकल पुलिस ऑफिशियल्स, ऐसे कुछ थे, लोकल पुलिस ऑफिशियल्स, एंड दे वर वर्किंग फॉर मराठा पेशवा। किसके लिए काम कर रहे थे? मराठा पेशवा के लिए। और व्हाट वाज द सेंटर ऑफ मराठा पेशवा? मराठा पेशवा का सेंटर क्या था? लिखो चैट बॉक्स में, क्या था? व्हाट वाज द सेंटर ऑफ मराठा पेशवा? पूना। वेरी गुड, पूना वाज द सेंटर। इसका मतलब मराठा पेशवा का अगर सेंटर है पूना, तो रामोसीस का भी सेंटर क्या हो गया? वेयर दे आर कंसंट्रेटेड? पूना। ठीक है, अब याद करो, एंग्लो मराठा वॉर्स फर्स्ट कब हुआ था? भूल गए? यही तो याद रखना है। मैंने बार बार कहा था, 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स याद रखना है आपको। फर्स्ट कब से कब तक है? एनी वन ऑफ यू याद कर पा रहे हो? बिना नोट्स देखे, जिसको याद है वही बताना। हाँ पूजा, ठीक है, राइट, ठीक है, याद है आपको। राइट, फर्स्ट है, हाँ गुड,
1775 टू 1782, ऐसे बताना है। याद आया? सेकंड 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 कब है? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। एकदम याद रखना है, ये सारी चीजें भूलना नहीं है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जितना पढ़ाऊं उतना ही याद रखो ना, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, 1803 टू 05। वेरी गुड। थर्ड, व्हाट इज द ईयर ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? वेरी गुड, 1817 18। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, समझो इस बात को। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ईयर इज व्हाट? 1817 18। एंड हियर मराठा पावर वाज कंप्लीटली सबड्यूड। और मराठा पेशवा को कहाँ भेज दिया जाएगा? पूना से कानपुर। कहानी याद है ना आपको? हियर मराठा पावर वाज कंप्लीटली सबड्यूड। मराठा पावर वाज कंप्लीटली सबड्यूड। मराठा पावर वाज कंप्लीटली सबड्यूड। और पेशवा सेंटर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पूना टू कानपुर। ठीक है, बॉस तो चले गए, बॉस चले गए फ्रॉम पूना टू कानपुर। अब इनका क्या होगा? दिस क्लास इज व्हाट? डिपेंडेंट क्लास ऑन पेशवा। याद आया जो डेफिनेशन थी सिविल रिवेलियन की? नाउ दे विल डू व्हाट? टाइमिंग देखो रिवोल्ट का क्या है? 1820। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब है? 1817 18। It means after this political change, what will happen? They will become unemployed. ये क्या हो जाएंगे? They will become unemployed. ये बेरोजगार हो जाएंगे। Got it? And when they will become unemployed, what they will do? किसकी वजह से बेरोजगार हुआ है बताओ? ब्रिटिश की वजह से तो they will do revolt against British. That is what? Civil rebellion. So when they will become unemployed, right? They will do revolt against British. They will do revolt against British. तो हो गया सिविल रिबेलियन, सिविल रिबेलियन। ठीक है, गॉट इट? बट ब्रिटिश वर वेरी स्मार्ट। ब्रिटिश को ऐसे भी सोल्जर चाहिए थे। इन्होंने कहा ये पहले से ही सोल्जर है, पहले से ही पुलिस ऑफिशियल्स है। तो व्हाट ब्रिटिश विल डू? ब्रिटिश विल ऑफर पीस नेगोशिएशंस एंड फाइनली ब्रिटिश विल से दैट all your crimes will be pardoned. You have done revolt against British, we will forget this and we will offer you, okay, office of soldiers in British Indian Army. तो इनको क्या कर लेंगे? वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट कर लेंगे। मेरी बात समझ गया ना? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अब यहां से एक पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ओके, इन द कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इज इट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट whenever you are, okay, annexing a state, what British has seen, that the soldiers will do revolt against the British Empire. So what British will do? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सोल्जर्स, क्योंकि उनको लड़ना आता है। सो व्हाट ब्रिटिश विल डू? ब्रिटिश विल ऑफर देम सैलरीज, गुड सैलरीज, एंड दीज सोल्जर्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटिश इंडियन आर्मी। उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल भी कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कंपोजिशन। ठीक है, अब बताओ कि अगर सोल्जर्स ही शामिल हो गए तो फिर तो आम आदमी को आवाज उठाने में समय लगेगा ना। बट ऐसा हर जगह नहीं होता था। जैसे अवध के केस में ब्रिटिश ऐसा कभी नहीं करेंगे। अवध was annexed in which year? वो भी एग्जांपल आपको बता दूं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज सिविल रिबेलियन, रिवोल्ट ऑफ रामोसीस। इन द सेम वे, राइट, एनेक्सेशन ऑफ अवध, यहां भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है सिविल रिबेलियन का। एनेक्सेशन ऑफ अवध रीजन, राइट, इसको कैसे भी लिख सकते हो आप, अवध और अवध। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, व्हेन इट वाज डन, व्हाट वाज द ईयर? 1856। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? फैक्चुअल है, ठीक है, फैक्ट की क्लास में थोड़ी बोरियत होती है। 1856 annexation of Awadh, and Awadh was annexed how? So we all know, on the pretext of misgovernance. Very good, on the pretext of misgovernance. Awadh was annexed on the pretext of misgovernance. अवध को तो annex कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि the soldiers and तालुकेदार्स of Awadh, Awadh's army was also disbanded. Awadh's nobility class, okay, they will lost the patronage and support of the ruler. Army was disbanded. तो in 1857 revolt, always remember, अवध का annexation कब है?
1856 में। रिवोल्ट कब है? 1857 में। तो डिसबैंडेड सोल्जर्स ऑफ अवध's आर्मी and talukadars of Awadh will play an important role in revolt of 1857, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए थे कंपनी की पॉलिसी से। ये बात समझनी है आपको? ओके, तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो, राइट दिस। ओके, आर्मी वॉज डिसबैंडेड, आर्मी वॉज डिसबैंडेड, आर्मी क्या हो गई? इट वॉज डिसबैंडेड, सेना भंग कर दी गई, राइट। एंड तालुकेदार्स, तालुकेदार्स rights were also affected. Talukedar's rights were also affected, right? Army was disbanded and Talukedar's right was also affected. Talukedar के अधिकार भी प्रभावित हुए। And here you will write one important point that read this: in revolt of 1857, in revolt of 1857, in revolt of 1857, in revolt of 1857, right? Okay, Awadh's Awadh's soldiers, Awadh soldiers, or the soldiers of disbanded army of Awadh, Awadh soldiers and Talukadars played the most important role. Awadh soldiers and Talukadars played the most important role. इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सिविल रिबेलियन का? अब थोड़ा पीजेंट रिबेलियन को समझते हैं। गॉट इट? अब नाउ व्हाट यू विल डू, you will leave some space in your notes so that when you are reading any book, attempting any test series, doing PYQs, अगर आपको कोई रिवोल्ट दिखता है कि इस कैटेगरी का है तो इसमें क्या कर लेना है? इंक्लूड कर लेना है। ओके, बट फॉर एग्जाम्पल्स दिस मच इज सफिशिएंट। ठीक है ना? इन एग्जाम व्हेन यू विल राइट सिविल रिबेलियन, ऑलवेज मेंशन अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, कुछ एग्जांपल लिख देना है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ civil rebellion. Okay, now we are going to discuss peasant revolt. Now the next category, right? Peasant revolt, peasant revolt. Now there was a very famous revolt, okay, uh, in Bengal, okay, Bengal region, and this was known as सन्यासी rebellion. ठीक है, और ये लगभग नियरली 40 years तक पूरे बंगाल में चलता रहा। 40 years कम टाइम नहीं होता, इट्स अ प्रोलॉन्ग पीरियड। ओके, सो राइट दिस सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी रिबेलियन। ओके, it started in 1760s and continued till 1800, 1800। तो ये लगभग लगभग कितने टाइम तक चला है? 4 डिकेड्स तक, 4 डिकेड्स तक, 4 डिकेड्स। और ये रिबेलियन कहाँ का है? बंगाल का है। और कंपनी रूल वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट वेयर? एट बंगाल, बंगाल में ही हुआ था। डिससैटिस्फैक्शन भी सबसे पहले कहाँ होगा? बंगाल में ही होगा। गॉट इट? अब देखो क्या है, this sannyasi rebellion was basically started by sannyasis. That's why this is called sannyasi rebellion. It was started by sannyasis. It was started by sannyasis. Okay, started by sannyasis. Okay, now sannyasi simply means what? Religious people. यही तो मतलब होता है इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में। ठीक है, और सन्यासी के आगे पीछे तो कोई होता नहीं, तो किसी भी अन्याय के खिलाफ वो क्या करेगा? आवाज उठाएगा, राइट? तो इन इंडिया, इन बंगाल रीजन, दीज सन्यासीज हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ व्हाट? opposition of injustices in the society. And here who is doing injustice in the society? Company rule is doing injustice in the society, and these sannyasis used to speak against this injustice at various time. बार बार ये क्या करते थे? जैसे किसी गांव में गए, ओके, एंड दे आर विजिटिंग एनी विलेज। सन्यासी को कौन पैट्रनाइज करता है? आम जनता। ठीक है, आम जनता जब तकलीफ में रहेगी तो सन्यासी भी तो उस तकलीफ से जुड़ेगा खुद को। ठीक है, तो एक तो सन्यासी का मतलब यहाँ रिलीजियस क्लास भी है, एंड द सेकेंड क्लास इज अ ग्रुप ऑफ पीपल भी है। Two meanings are there. One is what? A religious class, okay, which was always vocal against the injustices. And the second meaning is a social class, which always used to oppose the injustices in the society. So it's a religious class,
रिलीजियस क्लास वैसे भी सोशल क्लास होता है, प्लस इट इज अ क्लास ऑफ कॉमन सिटीजन्स ऑल्सो, ऐसा भी कह सकते हैं। दैट दोज, read this, those who were always vocal against injustices and exploitation. Exploitation. Injustices and exploitation. They were always vocal against injustices and exploitation. And a company rule has been established. And this company rule was promoting what? Or was doing what? It was doing injustices, and the company was doing exploitation. Company क्या कर रही थी? Injustices and exploitation. Company was doing this. Got it? Now, these sannyasis will start the revolt. और revolt में क्या करेंगे वो? They will start raiding the factories of the company. ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री होता है उनका, गोडाउन टाइप का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वहां पे वो they will start raiding the godown. They will start raiding the state treasuries of the company. They will fight with the armed soldiers of the company. उनके साथ भी वो बहुत bravely fight करेंगे. And this is a prolonged revolt. So the sannyasis will later be supported by indigo peasants. The sannyasis will later be supported by those peasants, okay, who have lost their land due to permanent system of settlement. हम उनको क्या कहेंगे? Displaced peasants. They will also come and support the sannyasis. Okay, you can say that those soldiers who have lost their job due to company rule, they will also come and support the sannyasis. Those soldiers who have lost their zamindari rights due to the company administration, they will also come and support these sannyasis. Indigo peasants will support the sannyasis. Clear? And this revolt has been portrayed in a novel, that is Anand Math. It was written by बंकिम चंद्र चटर्जी. ठीक है ना? तो इस पूरे के पूरे विद्रोह को पोर्ट्रे किया है किसमें? आनंद मठ में. किसने किया है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फिल्म्स क्वेश्चन. गॉट इट? हैव यू गॉट द आइडिया? ओके, दैट सन्यासीज was supported by various other groups. Read this. Sannyasis supported by various other groups like displaced zamindars. Okay, sannyasis supported by various other groups like displaced zamindars. Okay, got it? Displaced zamindars, right? Soldiers, soldiers, unemployed soldiers, unemployed soldiers. Okay, peasants who have lost their land, peasants who have lost their land, right? Peasants who have lost their lands. Okay, peasants who have lost their land. Okay, what they did? Read this. They raided company factory or company establishments. They raided company establishments, state treasuries. They raided company establishments, state treasuries. They raided company establishments, state treasury. Fought with armed soldiers, fought with British soldiers, armed British soldiers. They fought with British armed soldiers. They fought with British armed soldiers. Fought with British armed soldiers. Got it? Okay. This is Sannyasi revolt. Right, next point. Okay. This revolt has been portrayed. This revolt has been portrayed. This revolt has been portrayed. Okay. This revolt has been portrayed in the novel Anand Math. And mark this fact as important fact. This revolt has been portrayed in the novel Anand Math. And this Anand Math has been written by whom? So it has been written by Bankim Chandra Chatterjee. Anand Math, written by Bankim Chandra Chatterjee, right? Bankim Chandra Chatterjee. Anand Math, Bankim Chandra Chatterjee. Clear? ये बात आपको समझ में आई? Okay. In the same way, there is another movement, okay, that is called Farazi movement. ठीक है ना? Farazi movement के दोनों aspects हैं. ठीक है? One is what? Peasant aspect. The another is religious aspect. ठीक है? Socio religious reform movement में भी आया था. तो that I am discussing with you, right? Farazis, Farazis, Farazis movement. Okay, movement.
So it was concentrated in Eastern Bengal region. तब का ईस्टर्न बंगाल आज क्या बन चुका है बताओ? बांग्लादेश। ठीक है, 1830s टू 1860s, 1830s टू 1860s, तब का ईस्टर्न बंगाल आज क्या हो चुका है? बांग्लादेश। तो ये एरिया। फराजीज मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है समझना है इस बात को। मैंने कहा रिलीजियस इशू भी है, ठीक है, और पीजेंट कंसर्न भी है। देयर आर टू इश्यूज इन्वॉल्वड हियर, रेड दिस, पीजेंट कंसर्न एंड religious concern, peasant concern and religious concern. So looking at this peasant concern, यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं? peasant revolt. बट जब आप रिलीजियस कंसर्न को देखोगे तो द सेम रिवोल्ट ओके विल बी काउंटेड इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स टॉपिक। ये दोनों जगह आ जाता है फराजी, ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट भी है और सोशियो रिलीजियस कंसर्न्स भी है। अब पीजेंट रिवोल्ट क्या है? ओके, सो इन ईस्टर्न बंगाल रीजन the interests of the Muslim peasants, okay, will be, okay, in order to protect the interests of the Muslim peasants, this Farazi movement will organize them. उनको क्या करेगा? यूनाइट करेगा, it will unite them. Basically, the number of Muslim peasants is larger and there are Hindu landlords. जमींदार क्या थे? हिंदू. And this system of exploitation was common, that the zamindar will exploit the peasant. Feudalism में ये आमतौर पे देखा जाता है. Got it? Here also there was the same problem. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पीजेंट। देखो पीजेंट कंसर्न में क्या है, तो देखो यहाँ पे मेन कंसर्न है, दिस इज अ कंसर्न बिटवीन पीजेंट्स वर्सेस लैंडलॉर्ड्स। इनके बीच का ये इशू है, पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड्स। बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स कौन है? राइट, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, peasant Muslim, and it will do what? It will unite all Muslim peasants in Eastern Bengal region. It will be successful in uniting all Muslim peasants in Eastern Bengal region. It will be successful in uniting all Muslim peasants in Eastern Bengal region, all Muslim peasants in Eastern Bengal region against all Muslim peasants in Eastern Bengal region against the exploitation done by Hindu landlords, against the exploitation done by Hindu landlords. Okay, दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स में टारगेट कौन है? Those who are the agents of British, those who are the agents of British, agents of British. तो यहाँ पे एक शिकायत और है, और वो शिकायत क्या है? ओके, दूसरी शिकायत क्या है कि बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, इन इंडिया देयर वाज मुस्लिम रूल एंड हियर ब्रिटिश रूल हैज रिप्लेस्ड व्हाट? मुस्लिम रूल। दूसरा एंगल ये है दैट ब्रिटिश रूल हैज रिप्लेस्ड मुस्लिम रूल। ओके, सो दिस इज रिलीजियस एंगल, राइट दिस। रिलीजियस एंगल में पहला क्या है? ब्रिटिश रूल हैज रिप्लेस्ड मुस्लिम रूल, रिप्लेस्ड मुस्लिम रूल। okay, so this is giving them a feeling, and that is what? Loss of power, लॉस ऑफ पावर। पहले हम सत्ता में थे और अब सत्ता हमारे हाथ से चली गई, लॉस ऑफ पावर। ओके, तो लॉस ऑफ पावर की बात यहां जा रही है, दिस इज वन पॉइंट। ओके, तो लॉस ऑफ पावर मीन्स व्हाट दे वांट टू डू? दे वांट टू एक्सपेल ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया एंड दे वांट टू रीगेन द लॉस्ट पावर, मुस्लिम पावर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? वन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेल ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, to expel British from India and to regain the lost power and influence, to regain the lost power and influence. Okay, this is also one important point. Now there is some element of revivalism also in this Farazi movement. Some elements, revivalism का मतलब पता ही है आपको, मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बताया था मैंने। सो हियर आल्सो व्हाट वी सी दैट सम एलिमेंट्स ऑफ रिवाइवलिज्म, राइट, some elements of revivalism can also be seen, some elements of revivalism can also be seen। और वो रिवाइवलिज्म का एलिमेंट क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो, दे बिलीव दैट
मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म से या ओरिजिनल पाथ से क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है. गॉट इट. एंड नाउ वी हैव टू डू व्हाट, ओके, we have to, okay, uh, make this Muslim society again or bring this Muslim society again in its ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, इसमें जो भी करप्शन है, जो भी न्यू चेंजेस है, उनको हमें क्या करना है, बदलना है. ठीक है ना. सो एट दिस पॉइंट फोकस ऑन मेंटेनिंग प्योरिटी ऑफ इस्लाम एंड फोकस ऑन मेंटेनिंग फोकस ऑन मेंटेनिंग मेंटेनिंग purity of Islam and to bring reforms in Islamic society. Focus in maintaining purity of Islam and to bring reforms and to bring reforms, okay, to bring reforms in Islamic society or Muslim society. Now here the founders name are also important for exam. So write the founder's name, right, founder's name, okay. So here two names you need to remember, right. First name is Hazi Shariatullah. He is the founder. Hazi Shariatullah is the founder. Hazi Shariatullah is the founder. And second name, right, Dadu Mia. ठीक है, Dadu Mia was the son of Hazi Shariatullah. So Dadu Mia, this is the second name. And Dadu Mia was the son of Hazi Shariatullah. ठीक है, दादू मियाँ क्या थे, हाजी शरीयतुल्लाह के सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह. ठीक है, गॉट इट. तो इज द पीजेंट इशू इन्वॉल्व्ड हियर, यस. सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इशू इन्वॉल्व्ड हियर, यस. रिलीजियस इशू इन्वॉल्व्ड हियर, यस. सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में रिफॉर्मेटिव और रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी. ठीक है. एंड राइट वन पॉइंट, राइट कंक्लूजन पार्ट. This Farazi movement, okay, later became a part of Wahhabi movement. This Farazi movement later became a part of Wahhabi movement. This Farazi movement later became a part of Wahhabi movement. तो यहां भी हमने देख लिया that peasant concerns were part of it. Got it? Peasant concerns were part of it. In the same way, again in the Eastern Bengal region, that is now Bangladesh, वहां पे एक दूसरा पीजेंट रिवोल्ट होता है जिसका नाम है पागलपंथी रिवोल्ट. राइट, नेक्स्ट इज पागलपंथी रिवोल्ट. द नेक्स्ट इज पागलपंथी रिवोल्ट. पागलपंथी रिवोल्ट ये भी कहाँ है, ईस्टर्न बंगाल. द ईस्ट बंगाल टुडे इज बांग्लादेश. आज क्या है ये, बांग्लादेश. पागलपंथी रिवोल्ट, ओके. ईयर क्या है, राइट, 1820s 30s इज द ईयर. 1820s 30s इज द ईयर. ठीक है. और इस रिवोल्ट में इशू क्या है, पीजेंट कंसर्न. व्हाट इज द मेन कंसर्न हियर, पीजेंट कंसर्न. पीजेंट कंसर्न, ऑल पीजेंट कंसर्न विल कम. अगर आपको पागलपंथी पे लिखना है तो पीजेंट के सारे कंसर्न्स लिख सकते हो, सब होगा. बंगाल में देखो, डिस्प्लेस जमींदार, सनसेट लॉ, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, सब कुछ होगा. ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि किसी कॉमन आइडिया से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो. सपोज क्वेश्चन कम्स ऑन फराजी, कितना लिख सकते हो आप. नाउ यू कैन राइट अबाउट द पीजेंट इशू, यू कैन राइट अबाउट द रिवाइवलिस्ट इशू. तो आपको क्या करना है, टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के बस आइडियाज को रिलेट करना है. कुछ आइडिया, कुछ दिमाग में आया, बस लिखना शुरू कर दो. गॉट इट, ओके. फराजी में लिख सकते हो कि नहीं, कैन यू राइट 250 वर्ड्स इन फराजी नाउ, लिख सकते हो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है. Because now you can identify the main traits here. So this was basically here peasant concern is involved. और यहाँ पे दो कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ऑपरेशन ऑफ peasant class by zamindars. These two issues are the most prominent issues. High rate of land revenues and operation of peasant class by zamindars. ठीक है ना. This is the plus.
ओके, पागलपंथी। देखो, देर आर टू इंपॉर्टेंट लीडर्स हियर, ओके, राइट, लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो वन इज द फाउंडर, फाउंडर इज करम शाह, फाउंडर इज द करम शाह, एंड राइट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट लीडर was, okay, टीपू शाह, he was the son of करम शाह, उसने इसको आगे बढ़ाया, टीपू शाह, he was the son of करम शाह, नाम है टीपू शाह, दिस इज करम शाह। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है पागलपंथी में, राइट, देर आर सम रिलीजियस कंसर्न्स ऑल्सो, यहाँ पे क्या है, रिलीजियस कंसर्न्स दैट आर रिलेटेड टू रिवाइवलिज्म, ये भी है रिवाइवलिज्म, ठीक है। सो करम शाह के टाइम में विच इशू विल डोमिनेट, दैट रिलीजियस इशू, और टीपू शाह के टाइम में विच इशू विल डोमिनेट, पीजेंट कंसर्न, करम शाह के टाइम में विच विल डोमिनेट, रिलीजियस कंसर्न, ठीक है ना। इतना डिटेल में नहीं जानना है, सिंपली इतनी बात जान लो कि रिलीजियस कंसर्न प्लस पीजेंट कंसर्न, और रिमेंबर दीज टू नेम्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना, करम शाह एंड टीपू शाह, ओके। नाउ नंबर 10, राइट, नेक्स्ट, इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, okay, this is very important revolt, year is 1859 to 60, and highlight star mark लगाओ इसको ईयर पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो, 1857 रिवोल्ट इज अ माइलस्टोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। तो 1857 के आसपास के जितने ईयर्स हैं, अगर कोई रिवोल्ट और रिबेलियन है तो वही एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 1857 के आसपास क्या हो गया, 1859 60, इंडिगो रिवोल्ट, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट, संथाल विल बी इंपॉर्टेंट, ट्राइब, तो चाहे ट्राइबल रिवोल्ट हो चाहे पीजेंट रिवोल्ट, अगर वो 1857 के आसपास का इवेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फॉर एग्जांपल जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कब है, 1856, है ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अगर कोई रिमार्केबल ईयर है जैसे 1885, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके आसपास के जितने ईयर्स हैं, यू विल फाइंड दैट सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको दिमाग खुला रखना होगा पढ़ते हुए। नाउ 1859 60, अब इसमें राइट द नेम ऑफ द लीडर्स, नेम ऑफ द लीडर्स, नेम दिस, नेम इज आल्सो इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द लीडर्स। और इंडिगो रिवोल्ट पे एक चैप्टर है इन क्लास 8 एनसीईआरटी, ठीक है ना, उस चैप्टर को जरूर पढ़ना, बहुत शानदार लिखा हुआ है, यहीं पे लिख लो, रीडिंग, ओके, राइट, सेल्फ स्टडी क्या करना है, क्लास 8 एनसीईआरटी इंडिगो रिवोल्ट चैप्टर, रीड एटलीस्ट 5 टाइम्स, ठीक है, लिख लेना, जैसे दवा होता है ना कि दिन में 3 बार खाना है, वैसे 5 टाइम्स, 5 बार पढ़ो इसको, हाईलाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और यहाँ एक और बात लिख लो, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी पढ़ना है, क्लास 8 की एनसीईआरटी से, इसको छोड़ना नहीं, बड़ा शानदार दिया हुआ है, बेसिक्स क्लास 8 एनसीईआरटी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। और फिर क्लास 12 के एनसीईआरटी के साथ इसको पढ़ना है, मतलब क्लास 8 स्किप नहीं करना है, यू हैव टू रीड दिस, ओके। नाउ द नेम इज राइट, दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास, two leaders are important here, one is what, digambar biswas, and the second name is vishnu biswas, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, इंडिगो रिवोल्ट में आ गए दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। अब इशू क्या था, इशू आप पहले से पढ़े हुए हो, चाहो तो 150 वर्ड ऐसे ही लिख सकते हो, मैं एक हिंट दूंगा, इंडिगो फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन, समझ गए, कैन यू राइट 150 वर्ड्स नाउ। यहाँ पे इशू क्या है, फोर्स्ड COA, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिगो, दिस इज द मेन इशू ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। पोस्ट कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस में होता है, नीज में होता है या रैयती में होता है, इन विच मेथड, क्लास में डिस्कस किया था, इट वाज अंडर, नहीं नीज में कहाँ होता है, रैयती में था ना, याद है, 1/4 हिस्से में से 1 पार्ट पे आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना है, बताया तो था, गॉट इट, याद आया कुछ, नीज एंड रैयती। तो मेन इशू इज व्हाट, फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ओके, एंड रैयती मेथड ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, तो ये ध्यान रखना है, फोर्स कल्टीवेशन, रैयती मेथड, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, तो इसको ध्यान रखोगे, फोर्स कल्टीवेशन, रैयती, इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है ना, दिस इज व्हाट
इंडिगो रिवोल्ट, गॉट इट, ये बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट रिवोल्ट, राइट, अगेन ईस्टर्न बंगाल, दैट इज बांग्लादेश नाउ, पाबना पीजेंट रिवोल्ट और मूवमेंट, राइट, पाबना, पाबना ईस्टर्न बंगाल बांग्लादेश, राइट, पाबना पीजेंट मूवमेंट, पाबना पीजेंट मूवमेंट, राइट, ईस्टर्न बंगाल, आप ईस्टर्न बंगाल ही लिखोगे, ईस्टर्न बंगाल, पाबना, ठीक है ना। ईयर 1873, 1873, यानी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, पोस्ट 1857 में, दिस इज व्हाट, पोस्ट 1857, ईस्टर्न बंगाल, टुडे इट इज व्हाट, टुडे, okay, it's Bangladesh, this is a peasant issue, so all concerns related to peasants are a part of it, सारे मुद्दे आ जाएंगे peasants के। अब बताओ कौन कौन से मुद्दे आएंगे, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार्स, गॉट इट, ऑल द इश्यूज विल कम, ठीक है ना, सारे इश्यूज यहाँ आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट राइट दिस, ओके, दक्कन राइट्स पीजेंट मूवमेंट, नाम क्या है, दक्कन राइट्स, दक्कन राइट्स, बेसिकली दिस इज पीजेंट मूवमेंट, दक्कन राइट्स पीजेंट मूवमेंट, ये भी हो गया पोस्ट 1857, दक्कन राइट्स पीजेंट मूवमेंट पोस्ट 1857, बिकॉज द ईयर हियर इज 1874, 1874 का दक्कन राइट्स। दक्कन रीजन क्या होगा, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ रीजन होगा, इन महाराष्ट्र सम पार्ट्स ऑफ पूना, इन गुजरात सम पार्ट्स ऑफ, ओके, अहमदनगर, दे विल बी द पार्ट्स, सो राइट दिस, हाँ, तो राइट दिस, सम पार्ट्स ऑफ दक्कन, some parts of दक्कन, like कुछ दक्कन का इलाका है जैसे पूना, like जैसे अहमदनगर, right, पूना, अहमदनगर, we see this peasant movement, पूना and अहमदनगर, that is called Dakkan Rights peasant movement, ठीक है। Now this is what, why we are calling it rights here, because who is targeted in these rights, तो target कौन है, money lenders, money lenders plus oppressive zamindars, oppressive zamindars, okay, this is a peasant revolt, so peasants targeted here money lenders and oppressive zamindars, their homes were attacked, और उनकी सारी की सारी बही खाता जला दी किसानों ने, घरों में भाई, वो साहूकार आता था अपना डायरी लेके कि किसका कितना कर्जा उसके पास पड़ा हुआ है, उसके पास कोई कंप्यूटर वाली फाइल तो होती नहीं थी, तो लोगों ने कहा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दो, घर पे अटैक करो, इसका बही खाता जला दो, फिर अगली बार पूछेंगे कोई प्रूफ है कि हमने तुमसे लोन लिया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दक्कन राइट्स पीजेंट मूवमेंट, गॉट इट, दक्कन राइट्स पीजेंट मूवमेंट। सो मैं राइट क्यों कह रहे हैं, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग, दक्कन राइट्स पीजेंट मूवमेंट। अब नाउ इफ यू इंटर इंटर एक तरह से हम क्या थे, वी आर डिस्कसिंग ऑल इवेंट्स दैट यू डिस्कस 1885 onwards will be the part of इंडियन नेशनल मूवमेंट, सब कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट हो जाएगा। क्या 1885 के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में पीजेंट कंसर्न को गांधी ने एड्रेस किया है, यस, द फर्स्ट रीजनल एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी क्या है, चंपारण सत्याग्रह, है कि नहीं, 1970, देन खेड़ा, दो तो गांधी के ही क्रेडिट में आ गया, चंपारण एंड खेड़ा, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस वी विल डिस्कस इन आवर क्लास। चंपारण में क्या था, ओके, तीन कटिया सिस्टम, खेड़ा में द कंसर्न ऑफ द, यू कैन से पटीदार पीजेंट्स, आई विल डिस्कस लेटर, इसको भी डिस्कस करूंगा। इसी तरह से देयर इज वन अनदर मूवमेंट, राइट, इन द सेम पार्ट, चंपारण खेड़ा तो हम वी विल लेटर डिस्कस इन डिटेल, तो यहाँ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ बारदोली भी है, बट राइट दिस वन आल्सो, एका मूवमेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, एका मूवमेंट, बिकॉज चंपारण सत्याग्रह तो मेन लेक्चर में है ही है, गॉट इट, एका मूवमेंट नहीं है। एका मूवमेंट में राइट ईयर 1921-22, ठीक है। एरिया, एरिया क्या है एका मूवमेंट का, व्हाट इज द एरिया, राइट द एरिया, यूपी, यूपी, यूपी में भी हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, दिस इज द एरिया, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, ठीक है। इतना डिटेल में यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, आप यूपी याद रखो, एका मूवमेंट, एंड द नेम ऑफ लीडर्स, राइट, मदारी पासी, मदारी पासी was the leader of this movement, एका मूवमेंट, मदारी पासी was the leader of this movement, ठीक है ना।
यहाँ पे कंसर्न क्या होंगे, पीजेंट कंसर्न होंगे। आपको पता है पीजेंट कंसर्न क्या, हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्सप्लॉइटेशन बाय जमींदार, तो हियर राइट दिस पीजेंट कंसर्न। एका मूवमेंट में क्या होगा, पीजेंट कंसर्न, ठीक है ना। इन द सेम वे बारडोली सत्याग्रह, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पीजेंट कंसर्न, उसको भी आगे हम देखेंगे 1927। बट लिख लो बारडोली सत्याग्रह में, बारडोली, बारडोली सत्याग्रह, सत्याग्रह 1927, बारडोली सत्याग्रह 1927, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहला देखो, रीजन इज व्हाट, गुजरात, गुजरात रीजन, बारडोली सत्याग्रह में रीजन इज गुजरात, एंड द लीडर ऑफ दिस बारडोली सत्याग्रह इज हु, सो इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, he is the leader in this बारडोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गॉट इट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे मुद्दा क्या था, व्हाट वाज द इशू, टेक्निकल इशू बता दे रहा हूँ, लेटर आई विल डिस्कस इट इन ओके नेशनल मूवमेंट पार्ट। देखो, दिस इज क्लास ऑफ पीजेंट कॉल्ड पटीदार्स, रिच पीजेंट्स आर नोन एज पटीदार्स इन गुजरात, ठीक है। खेड़ा में भी उनका इशू है, राइट, rich peasants, and there is a particular word for these rich peasants, and this particular word is what, this word is patidars, clear, there is a particular word, and what does this show, क्या दिखलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुद्दा क्या था, what was the issue, the issue of you can say cotton, cotton का issue था, cotton prices, there was a sudden decline in the prices of cotton, and at the same time government did what, government increased the land revenue rates by more than 20%। तो देखो क्या होगा, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट का रेट डिक्लाइन करेगा और उस समय अगर आप रेट ऑफ रेवेन्यू बढ़ा दोगे, तो ये पीजेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। एंड दिस हैपेंड इन द मार्केट, द रेट्स ऑफ कॉटन डिक्लाइंड, and on the other side the government did what, increase the land revenue rate by more than 20%, so who will suffer loss, peasants will suffer direct loss, peasants को सीधा सीधा क्या होगा, नुकसान होगा, they will suffer loss। now what will happen, they will oppose this, okay, government will form a committee, the name of that committee was Maxwell Broomfield committee, ठीक है, गवर्नमेंट एक कमिटी भी बनाएगी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमिटी, and what will happen, the committee will find that the concern of the peasants is genuine, peasants का concern क्या है, genuine है, गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, but still the government will do what, hide the suggestions or recommendations of this committee, and they will increase the land revenue by more than 20%, and in this situation the peasants of this Bardoli region will start, okay, this movement which was provided leadership by Sardar Vallabhbhai Patel, got it, Sardar Vallabhbhai Patel ने क्या किया, leadership provide करी, finally a pressure was mounted on the government, and the government was ready to cut the land revenue rates, okay, so instead of 22% the government was now ready to bring it down at the level of 6%, ठीक है ना, so that is called Bardoli Satyagraha, related with peasant concern, and it was provided leadership by Sardar Vallabhbhai Patel, clear, got it। अब इसके बाद जो भी पीजेंट मूवमेंट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। इसके बाद क्या होगा, जैसे ऑल इंडिया किसान सभाज, देयर आर प्रोविंशियल किसान सभाज, ओके, व्हेन भगत सिंह विल कम, ओके, ही विल फोकस ऑन गेनिंग सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट पीजेंट्स, उनके सपोर्ट को पाने की कोशिश करेंगे, गांधी विल ट्राई टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद ऑल द पीजेंट इश्यूज बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो हैव यू गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट द पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यू नो द बेसिक्स, यू नो द कॉमन पार्ट की मदद से हम क्या करते हैं, वी कैन राइट द आंसर वेरी इजीली। If you identify that this is a peasant revolt, you will start writing in main body the main reasons responsible for the peasant revolt, वो तो हमेशा कॉमन होगा ना, and you will have to update a few facts, ठीक है ना। बारडोली में और कुछ इश्यूज हैं, I will discuss during the Indian national movement। Now the two parts are clear, सिविल रिवेलियन पूरी तरह से समझ में आया आपको, yes or no, peasant revolt पूरी तरह से समझ में आया। Now write third category, that is tribal revolts, tribal revolts, okay, and that is also one of the most important point here,
टॉपिक है ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट। ओके, राइट, ओके। चुआर ट्राइब रिवोल्ट, चुआर ट्राइब रिवोल्ट, चुआर ट्राइब रिवोल्ट। जो ईयर बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, केवल वही मार्क करना और केवल वही याद करना, ठीक है ना, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। देखो 1760s टू 1810, ठीक है, चुआर ट्राइब रिवोल्ट, गॉट इट। चुआर ट्राइब, चुआर ट्राइब, दिस ट्राइबल ग्रुप इज फाउंड इन बंगाल, मिदनापुर रीजन, बंगाल में मिदनापुर रीजन, बंगाल मिदनापुर रीजन, चुआर ट्राइब रिवोल्ट, गॉट इट। चुआर ट्राइब रिवोल्ट, बंगाल मिदनापुर रीजन। और ओके, ये क्या है, तो एक्सटेंशन देखो 1760s टू 1810। अब एक बात बताओ, इफ आई से दैट व्हाट वर द रीजंस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चुआर ट्राइब रिवोल्ट? हाँ, बिल्कुल। देखो कभी भी मेन क्या हो जाएगा, लैंड रेवेन्यू रेट से इस तरह के कुछ इश्यूज हो जाएंगे, बट यू विल फाइंड दैट द रीजंस विल बी सिमिलर, यू ऑल नाउ राइट नेक्स्ट। हो एंड मुंडा ट्राइब रिवोल्ट, सेकेंड एग्जाम्पल। अब आप समझ लो, कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है उसको लिखने से, मेरी बात समझिए ना, बिल्कुल नहीं डरना। उसको क्या करना है, एक जनरलाइज फॉर्मेट में उस आंसर को लिख देना है, राइट। हो एंड मुंडा ट्राइब्स रिवोल्ट, हो एंड मुंडा ट्राइब्स रिवोल्ट, ठीक है, हो एंड मुंडा ट्राइब्स रिवोल्ट। अब एरिया क्या है, ओके, तो पहले ट्राइब जहां भी आएगा तो यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर द एरियाज। एरिया कौन सा है, तो एरिया इज राइट छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन, राइट दिस, छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन, झारखंड, ठीक है ना, छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन। ये है हो एंड मुंडा ट्राइब रिवोल्ट का रीजन, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, 1820s 1830s, 1820s 1830s, ये है हो एंड मुंडा ट्राइब रिवोल्ट, राइट। रीजंस कॉमन, कॉजेस कॉज रीजंस और फैक्टर्स कॉमन, राइट, कॉमन, ठीक है। नाउ द थर्ड, थर्ड इज राइट, ओके, कोल ट्राइब्स रिवोल्ट, कोल ट्राइब्स रिवोल्ट, अगेन 1820s 30s, कोल ट्राइब रिवोल्ट 1820s 30s, ठीक है ना, कोल ट्राइब्स रिवोल्ट। एरिया इज सिंहभूम रीजन, झारखंड, सिंहभूम रीजन, झारखंड, सिंहभूम रीजन, झारखंड, कोल ट्राइब सिंहभूम रीजन, झारखंड, राइट। रीजंस और फैक्टर्स कॉमन, रीजंस और फैक्टर्स आर कॉमन, reasons or factors are common, got it। now right next, okay, खासी ट्राइब्स रिवोल्ट, खासी ट्राइब्स रिवोल्ट, ये भी आप समझ गए होंगे, गारो खासी जयंतिया से क्लियर हो गया। खासी ट्राइब्स रिवोल्ट, राइट, खासी ट्राइब्स रिवोल्ट 1820s, ओके, राइट। नॉर्थ ईस्ट, खासी हिल्स पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है, गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना, गारो खासी जयंतिया हिल्स, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, गारो खासी जयंतिया हिल्स, तो इसमें जो खासी हिल्स है, यहाँ पे जो ट्राइब रहती है उसी को क्या कहते हैं, खासी ट्राइब्स, ठीक है ना। तो खासी ट्राइब्स 1820s, ओके, नॉर्थ ईस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज खोंड ट्राइब रिवोल्ट, द फोर्थ इज खोंड, KHOND, खोंड ट्राइब्स रिवोल्ट, खोंड ट्राइब्स रिवोल्ट, Khond tribes revolt. Okay. Year is right. 1830s to 1850s. This is what? Khond tribe revolt. 1830s to 1850s. Okay. Area क्या है? Khond tribe का उड़ीसा. Right. Khond tribe area is उड़ीसा. ये कहाँ रहने वाले हैं? उड़ीसा. और इनका रिवोल्ट जो था, देखो यहाँ एक जैसे अदर फैक्टर्स विल बी देयर, दूसरे रीजन तो रहेंगे ही रहेंगे, बट देयर इज अ स्पेशल रीजन एंड दैट वी मस्ट नो, राइट दिस, ओके। वन पर्टिकुलर रीजन, राइट हियर देयर इज वन पर्टिकुलर रीजन, a specific point, पर्टिकुलर रीजन और a specific point, और वो पॉइंट क्या है, मारिया सिस्टम, मारिया सिस्टम, राइट। द कस्टम ऑफ
Okay, the custom or system of, okay, human sacrifice, नर बलि, ठीक है, custom of human sacrifice was prevalent among them. Okay, प्लस अदर इशू। तो देखो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश सेड दैट दिस इज वेरी इनह्यूमन, ये तो बहुत इनह्यूमन और क्रूअल है, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस, गला काट के देवी को चढ़ा दो। अंग्रेज डरते थे कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, ठीक है, दे स्टार्टेड एंटरिंग द फॉरेस्ट, कहा कहीं पता चले हम ही ना शिकार बन जाए, तो इसको इन्होंने बैन किया, बैन किया तो ये नाराज हो गए, राइट। सो अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है, अदर फैक्टर्स ऑफ ट्राइबल डिसरिस्पेक्शन, ये तो होगा ही होगा, ये अंडरस्टूड है कि होगा ही होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन होगा, फॉर द ब्रिटिश डिकोज विल एंटर इनटू द फॉरेस्ट, ये सारे फैक्टर्स होंगे, बट दिस इज वन पार्टिकुलर फैक्टर, राइट। हियर द लीडर वाज चक्र बिसोई, राइट द नेम आल्सो, यहाँ पे इनका लीडर कौन है, चक्र बिसोई इज द लीडर, ओके, इन खोन ट्राइब रिवोल्ट, चक्र बिसोई, ठीक है। नाउ राइट नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज संथाल रिबेलियन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर भी आप याद रखोगे, दिस इज आस्क्ड टू मैच इन एग्जाम, ठीक है ना। संथाल रिबेलियन ईयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, संथाल रिबेलियन ईयर क्या है, 1855-56। अब आप समझ गए व्हाई दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, अभी बताया था ना, क्वेश्चन बैंक में देखोगे सारे वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1857 के नियर है, नियर टू द स्टेट, ओके, संथाल। नाउ this is also called Hool uprising, Santhal revolt or Hool revolt. Tribe is what, Santhal tribe, tribe क्या है, Santhal tribe है, year क्या है, near to revolt of 1857, 1855, 56, ठीक है, and they were covering, right, some parts of Bihar, Jharkhand, ठीक है, झारखंड तब थोड़ी ना था, ठीक है ना, some parts of Bengal, सब एक में ही थे, तो वहां पे एक संथाल ट्राइब था, ओके, बंगाल का भी कुछ एरिया आज के हिसाब से देखोगे तो कुछ बिहार का एरिया था, कुछ झारखंड का एरिया था, वहां ये रहते थे, गॉट इट, एंड राइट दिस लीडर, लीडर सीधू कानू, वन इज व्हाट, सीधू, एंड द सेकंड इज व्हाट, कानू, दे वर द लीडर्स ऑफ संथा, सीधू एंड कानू, कानू, ओके, सीधू कानू आर द लीडर, ठीक है, राइट, वन मोर पॉइंट, ओके, दामन ए कोह रीजन, ये भी वर्ड याद रखना, कभी प्रीलिम्स में क्या पता यूज कर ले, ये पॉपुलर वर्ड है, दामन ए कोह रीजन, ठीक है, व्हाट इज दामन ए कोह रीजन, द एरियाज, ओके, वेयर दीज संथाल ट्राइब्स लीव, झारखंड, बिहार और बंगाल का वो पार्टिकुलर एरिया जहां पे ये ट्राइबल ग्रुप रहता था, उसे ही हम क्या कहते हैं, दामन ए कोह रीजन, तो राइट दिस, दामन ए कोह रीजन वाज द एरिया ऑफ संथाल ट्राइब, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ संथाल ट्राइब, देयर लीडर्स वर सीधू एंड कानू, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो गिवन इन डिटेल इन एनसीईआरटी बुक, तो वहीं लिख लो क्लास 8 एनसीईआरटी, संथाल रिबेलियन रीड इन डिटेल, क्लास 8 एनसीईआरटी, संथाल रिबेलियन रीड इन डिटेल, रीड इन डिटेल। अच्छा, इस संथाल रिबेलियन से एक स्टोरी भी आपको बताता हूं, दैट इज ऑल्सो गिवन इन क्लास 8 एनसीईआरटी, एंड व्हाट इज द स्टोरी, these Santhal tribes or any other tribal group, when they fight with British, this struggle is equal struggle or unequal kind of struggle. Nature of struggle is what, equal or unequal, unequal. Why unequal, because tribal groups are fighting with their traditional weapons, arrows, bows, इससे लड़ रहा है, and British Indian Army is fighting with modern weapons, उनके पास modern weapons है, they have rifles, so this is a kind of unequal struggle, पहली चीज ये है। दूसरी बात क्या है, the element of superstitions, okay, among the tribal, okay, this is also one important point, कहीं एक बॉक्स में लिख लो, write this, unequal nature of a struggle, in a box you will write, these are the limitations of tribal revolt, limitations, यहाँ पे दो पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है, you will find this limitations में, right, unequal nature of struggle between tribal groups and company, unequal nature of struggle, यहाँ ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी लिख सकते हो, right, unequal nature of struggle between tribal groups and
ब्रिटिश इंडियन आर्मी और कंपनी, इनके बीच का जो स्ट्रगल था दैट वाज अ काइंड ऑफ अनइक्वल स्ट्रगल. Reason all you already know that this is what they are fighting with their traditional weapons, that is they are fighting with knife, arrows, okay, swords, like this traditional weapons, ठीक है ना, और they are fighting with rifles, तो they can shoot their target from a distance, ठीक है, ये एडिशनल एडवांटेज है राइफल्स के साथ, ठीक है, कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपने टारगेट को शूट कर सकते हो. So obviously here British are in advantageous position. British are in a advantageous position. Now the second point is right, elements of superstitions, elements of superstitions among tribals. ये भी एक बहुत बड़ा limitation है, element of superstitions among tribals. And what is that element of superstition? We need to understand. Element of superstitions among tribals. क्या है वो element of superstition? तो देखो, what is that element of superstition? It is very clear. Element of superstition क्या है? देखो. Now, who is the leader here in Santhal revolt? Sidhu and Kanu. Now, tribals को ऐसा लगता है that there, I know that I have already discussed with you that tribal culture में सबके अपने एक local god होते हैं. तो इनके local god थे ठाकुर जी. So the tribal Santhal tribes believe that the local god Thakurji has blessed Sidhu and Kanu with supernatural powers. और वो supernatural powers क्या है? That if the members of the tribe will die fighting with British, Sidhu and Kanu has the power to make them alive. सिद्धू और कानू उनको जिंदा कर देंगे. ठाकुर जी ने उनको ये शक्ति दी है. अब ये एकदम जोश में भरे पड़े हैं कि हमारे लीडर के पास ऐसी पावर है कि ये जिंदा कर देगा. अब सामने ब्रिटिश खड़ा है, मिस्टर जॉन राइफल लेके. ट्राइबल कहते हैं चलाओ गोली चलाओ, मैं डरता नहीं, तुम चला के देखो, अभी हमारा जलवा देखोगे. वो गोली चला देगा, ट्राइबल की डेथ हो जाएगी, ठीक है. उसे क्या लग रहा है मैं तो दोबारा जिंदा हो जाऊंगा. अब बताओ इनका क्या है, नंबर इज ऑल्सो लिमिटेड. एंड वेन यू आर फाइटिंग विद ब्रिटिश हैविंग दिस सुपरस्टिशन कि गोली लगने के बाद भी हम नहीं मरेंगे, हमारा लीडर हमें दोबारा जिंदा कर देगा, तो इससे लॉस किसको हो रहा है? ब्रिटिश को हो रहा है. वो तो बड़े होशियार है, कहेंगे 2 4 10 लोग आओ और आ जाओ, एक ही साथ जिंदा हो जाना, ठीक है. अभी हमें गोली गोली मार लेने दो, ठीक है. तो एलिमेंट ऑफ superstitions was also there, okay, but still these people, tribal people, were the most innocent people and they were fighting for their rights, genuine rights, ठीक है ना. कम से कम गोली का सामना करने का हिम्मत तो था इनके अंदर, वो इतनी बहादुरी से सामना कर रहे थे. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट राइट. नेक्स्ट राइट. ओके. क्या? हाँ हाँ बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट, भील ट्राइब्स रिवोल्ट. नेक्स्ट इज, ये एग्जाम उसमें एनसीईआरटी बुक में डिटेल से दिया हुआ है संथाल ट्राइब रिवोल्ट, तो इसको पढ़ना है आपको. जहां पे मैं बताऊं उसकी रीडिंग जरूर कंप्लीट करना. नाउ राइट भील ट्राइब्स रिवोल्ट. भील ट्राइब्स रिवोल्ट. भील ट्राइब्स रिवोल्ट. ओके. क्या है भील ट्राइब्स रिवोल्ट? रेड दिस. ओके. 1810 to 1840s. 40s. Western Ghat region. Read this. Bhil tribes. Western Ghat region. Western Ghat region. Bhil tribe. Western Ghat region. ठीक है. राइट. लीडर वॉज सेवरम. इनके लीडर का नाम क्या था? सेवरम. हाईलाइट कर लेना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. लीडर वॉज सेवरम. भील ट्राइब्स लीडर वॉज शेवरम. ओके. सेवरम. एंड राइट. वाई दे रिवोल्टेड? रिवोल्ट क्यों किया? वी ऑल पॉइंट इज कॉमन. सारे पॉइंट कॉमन है, तो अब किसी पे भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हो ना. राइट. नेक्स्ट, रामोसी ट्राइब्स रिवोल्ट. अगेन रामोसी ट्राइब्स रिवोल्ट. रामोसी ट्राइब्स रिवोल्ट 1820s. और जब हम वेस्टर्न घाट कह रहे हैं तो महाराष्ट्र रीजन आएगा उसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना. जब भी मैं वेस्टर्न घाट लिखूं महाराष्ट्र रीजन आएगा उसमें, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. राइट. अगेन वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र रीजन. रामोसी ट्राइब्स वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र रीजन. ओके. वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र रीजन. क्लियर? ओके. नाउ ठीक है, ये सारे के सारे आपने देख लिए. ओके.
एक और रिवोल्ट है जो हिस्ट्री में बड़ा पॉपुलर है, उसको आप उसमें पीजेंट वाले में लिख लो, वो है मोपला अपराइजिंग। राइट दिस, पीजेंट वाले में ऐड कर लेना मोपला, मोपला, मोपला अपराइजिंग, पीजेंट रिवोल्ट। ओके, 1830s टू 1850s, 1830s टू 1850s, मोपला पीजेंट अपराइजिंग। ठीक है, मोपला is also called mapilla, and these are what, mopla is a group, right? When we are called mopla or mopilla, right, mopla or mapilla, हाँ, read this, they are muslim peasants, muslim peasants or muslim cultivators. Mopla group is a muslim peasant or muslim cultivators group in Malabar region, Kerala, in Malabar region, Kerala, Malabar region, particularly Kerala, Mopla, मालाबार रीजन केरला। ये इशू क्यों मतलब इतना पॉपुलर है, इसके पीछे एक रीजन है। दिस इज अ पीजेंट इशू सिंपली। द मेन रीजन इज इन दिस रिवोल्ट, बेसिकली दिस इज अ पीजेंट एंड जमींदार क्लैश। हियर पीजेंट्स फाइट अगेंस्ट जमींदार, पीजेंट्स फाइट अगेंस्ट जमींदार, यही मेन इशू है। पीजेंट्स आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेसिव जमींदार, दिस इज द मेन इशू। बट द कॉलोनियल हिस्टोरियंस विल गिव इट ऑर्थोडॉक्स कलरिंग or communal coloring. Why the colonial historians will give communal coloring? There is a reason. Because here the majority of the peasants are what? Muslim. Majority of the peasants were Muslims. That is what? Mopla. And here the Hindu landlords, majority of the landlords were Hindu landlords. और उस टाइम प्रॉब्लम क्या है? Exploitation of peasants by zamindars. This is the issue. So when these peasants will react, the colonial historians will give it a communal coloring. That is it. It is what, a kind of Hindu-Muslim conflict. ऐसा वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ गया ना? इसलिए ये थोड़ा मतलब पॉपुलर रहता है। Got it? Have understood this entire topic? पूरा का पूरा आपने समझ लिया? Okay. Now I am asking you a few questions. Now we have discussed all category of revolt before 1857, mainly before 1857 सारा हमने देख लिया। That there was one civil rebellion, peasant revolts group, tribal revolts group, right? सारे के सारे issues, even sepoys का भी हमने issue देखा, all these revolts, clear? Now what I am asking you one thing, that what is the common objective or aim in these or in all these revolts? What was the common objective or aim? इन सभी रिवोल्ट्स का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव और एम आपको दिखता है जो आप गेस कर पा रहे हो? वो क्या है कॉमन ऑब्जेक्टिव? टू अपरूट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। इनका ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल बना रहेगा तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आएगी। ये बात किसको समझ में आती है? एजुकेटेड क्लास को। इनका सीधा ही फंडा था अपरूट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी ऑब्जेक्टिव क्या था? अपरूट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। And if they are saying that we want to uproot British rule from India, it means they want to bring back the old order. पहले वाला सिस्टम लाना चाहते हैं। बताओ कोई डार्क एजेस को क्यों वापस लाएगा? अगर डार्क एजेस था, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने कहा कि 18th सेंचुरी वाज अ डार्क एज और अंग्रेज आ गए तो मॉडर्न एज शुरू हो गया, तो कोई पागल है जो मॉडर्न एज से फिर डार्क एज की तरफ भागेगा? तो ये एक इंडिकेशन है और हिंट है कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने कितनी चालाकी से 1757 ऑनवर्ड्स के पीरियड को क्या बताया? मॉडर्न एजेस। 1757 के बाद को वो मॉडर्न एज बताते हैं ना। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया स्टार्टेड इन 1757 एंड कॉलोनियल हिस्टोरियंस राइट दैट दिस इज व्हाट, मॉडर्न एज। सो इफ इट इज मॉडर्न एज, व्हाई द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर डार्क एज? क्यों डार्क एज को ऑप्ट कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, दैट व्हाई द पीपल वांट टू ब्रिंग बैक द ओल्ड कंडीशन। व्हाई फॉर डिकूज the previous days were the golden days? Why for the tribals? Tribals के लिए previous days क्या था? Golden days. British came and they lost their independent, okay, status. तो ये बहुत बड़ी बात है ना। This raise a question on the validity of the claim of modern India after 1757. So write this point, that all these revolts have a common objective, and that was to uproot
British rule from India. All had a common objective to uproot British rule from India. It means to bring back the old order, to bring back the old order. This was the objective. They all have the objective, okay, to uproot British rule from India, to bring back the old order को वापस लाना है. This is the objective, to bring back the old order. Now, the question is, why the people wanted to bring back the old order? क्यों लाना चाहते थे? Why? What could be the reason? So, right, okay, it's very simple because, right, for these social groups, right, for these social groups, pre-British period was pre-British period was better than the British age. Pre-British period or pre-British ages were better than the British ages. Pre-British period or age was better than the British age or British period. That's why they want to what? Okay, restore it. Right? For tribals, right? For tribals, the Mughal period was, for tribals, Mughal period was golden days. Golden days. ओके, गोल्डन डेज. इस बात को खुद कौन कहता है? ट्राइबल्स कहते हैं कि मुगल पीरियड हमारे लिए क्या था? गोल्डन डेज. ओके, राइट. नेक्स्ट पॉइंट. ओके, द फ्रीक्वेंट रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस बाय various groups in India. The frequent revolts and rebellions by various groups in India. By various groups in India during the colonial rule. During the colonial rule. During the colonial rule raises during the colonial rule raises serious question raises serious question on the raises serious question on the validation of company rule in India, on the validation of company rule in India and the claims of modern ages. ठीक है ना? On the validation of company rule in India and the claims of modern ages. ठीक है? It raises a simple question. ठीक है? Now tell me, all these revolts and rebellions, were they having a national character? Yes or no? No. Yes. नहीं निका. No. नेशनल कैरेक्टर देखो, नेशनल कैरेक्टर तब होगा जब सारे रिवोल्ट्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो गए. वो नेशनल कैरेक्टर दिखना शुरू होगा 1885 के बाद, पहले नहीं. ठीक है ना? दे आर हैविंग अ लोकल कैरेक्टर. इनकी लीडरशिप भी क्या है? लोकल है. ध्यान रखना इस बात को. ओके, सो राइट दिस पॉइंट आल्सो दैट all these revolts and rebellions were not having a national character, they are having a regional character. Read this, they are having a regional character and regional leadership. These revolts and rebellions are having regional character and regional leadership. Regional character and regional leadership. और ये इनकी limitation भी है. Got it? This is their limitation also, right? Limitations, points of limitations. पहले ही बता चुका हूँ 2 point. Limitation क्या हो गया? Limitation, right? Point number 1. Limitation, point number 1, right? Okay. Read this. Point 1, right? Limitation में, right? Localized revolts, isolated from each other. Localized revolt. Point number 2, isolated from each other. Localized revolt, isolated from each other, right? Next point. Okay, element of superstitions, element of superstitions, element of superstitions, right? Next point. Okay, they were not successful in realizing their objective. क्योंकि इनका objective क्या था? They were not successful in realizing their objective. Okay,
व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? अपरूटिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। राइट अ क्वेश्चन, राइट। यूपीएससी जीएस मेंस क्वेश्चन 2023। दिस इज अ यूपीएससी GS mains question, GS mains question 2023. And what is the question, right? Okay, the question is, how did the colonial rule affect the tribals in India? How did how did the colonial rule how did the colonial rule affect the tribals in India? How did the colonial rule affect the tribals in India? Okay, and what was the tribal response? And what was the tribal response? And what was the tribal response? Okay, to the colonial operation. To the colonial operation. What was the tribal response to the colonial operation? Got it? Now, what I mean to say is that when UPSC is asking question nowadays, are they asking from a particular theme or are they asking from a holistic theme? Integrated theme. Integrated theme. पहले का मॉडल क्या था? They will ask like this. They discuss the factors of Santhal rebellion. अब वो ऐसे नहीं पूछ रहे हैं. In a single question they have asked all information. मतलब if you have a good understanding of the topic, then you can write the answer. This question is what? Understanding based question. आप देख लो. This question is understanding based question. This question is what? Understanding based question. Okay. This question is based on the integrated theme. They have integrated everything, holistic theme. And again the question is divided into how many parts? 2 parts. जो इस बार भी फॉर्मेट में किया. Every question they are dividing 2 parts of the question. और चैलेंजिंग क्या है कि you are going to write in 150 word. तो can you write the complete sentences? बाबा लोग जो कहानी सुना रहे हैं लिख पाओगे क्या? नहीं. प्रिंटेड मटेरियल पता चला 150 वर्ड का आंसर है. मॉडल आंसर कितना दिया हुआ है? 400 वर्ड. फिर वहां पे एक्सक्यूज क्या है? 400 वर्ड लिखा हुआ है बेटा, इसमें से तुम अपने लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल लेना. निकाल के ही दो भाई, क्या होगा पॉइंट? मेरी बात समझो. द मेन चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज टू राइट योर आंसर इन द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट. उसके साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपके दूसरे क्वेश्चंस अफेक्ट हो जाएंगे. मेरी बात समझ गया ना? 150 वर्ड्स में अगर आपने 300 वर्ड्स लिख दिया तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा आपका. ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी. अब देखो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, that how did the colonial rule affect the tribals in India? What does it mean? What it is asking? That how colonial rule affected the condition of tribals in India? तो आपको पता है factors for the tribal dissatisfaction. यही बात तो बतानी है ना. कॉलोनियल रूल के उन्हीं पॉलिसीज की वजह से ट्राइबल डिससेटिस्फेक्शन हुआ. यू ऑल नो द फैक्टर्स ऑफ ट्राइबल डिससेटिस्फेक्शन. जैसे क्या हो गया? ओके, ब्रिंगिंग ट्राइब, imposing land revenue on tribal land, बैनिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन, जितना मैंने आपको बताया. फॉरेस्ट रिसोर्सेज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को टैक्स करना, उनके इंडिपेंडेंट लाइफ में इंटरफेयर करना, उनके सोशल कल्चरल ओके उसमें वहां पे इंटरफेयर करना, मरिया सिस्टम को बैन करना, प्रोहिबिट करना. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ना. सो दिस इज वन पार्ट वेयर यू विल राइट द ब्रिटिश पॉलिसीज दैट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स. इट मीन्स जो मैं पहले बता चुका हूं, फैक्टर्स ड्यू टू विच द ट्राइबल्स वेर डिससेटिस्फाइड. ये कुछ पॉइंट्स बता देना है एंड डोंट राइट द फुल सेंटेंसेस. एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रेस्पॉन्स टू दिस कॉलोनियल ऑपरेशन? ट्राइबल रेस्पॉन्स क्या था? ट्राइबल ने कैसे रेस्पॉन्ड किया? बाय रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस. किया कि नहीं? रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस में ये पॉइंट लिखोगे कि नहीं? अनइक्वल काइंड ऑफ वॉर, दे फॉट विद देयर ट्रेडिशनल वेपन्स, ओके, एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन, दे फॉट ब्रेवली. ये सारी बात बताएंगे ना. हाउ डिड दिस ट्राइबल डू रिस्पॉन्स? ठीक है. डिड दे प्रोवाइड द रिस्पॉन्स इन अ you can say that where they connected with each other? No. ये response में भी क्या था? Isolated response था. It was regional, not connected with each other. And can you give some examples here of the tribal revolt or rebellion? Yes,
you have to give some example of tribal revolt and rebellions also. तो इस क्वेश्चन में कहीं एग्जाम्पल नहीं पूछा है, बट यू विल हैव टू राइट सम ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लिखना है. ओके, so this is the, you can say this is what a reflection of UPSC question, that even if you are reading, अब एक बार तो ट्राइबल पूछ लिया ना, इस बार पीजेंट पूछा नहीं, चांसेस हैं कि रिवोल्ट रिबेलियन अगली बार आ जाए आपके पेपर में. ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना. ठीक है, कि इस बार क्या छूटा हुआ है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पूछा कि नहीं पूछा, ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म छूट रहा है तो अगली बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म. ठीक है, कंपनी का जो पॉलिसी था, एक्सप्लॉयटेशन था, वहां से सवाल पूछा तो ठीक है, उस टॉपिक को छोड़ो. तो ऐसे आपको क्या करना है, चीजों को, है ना, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है. व्हाट इट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से इस बार जीएस में क्वेश्चन आया कि नहीं, नहीं आया. 1935 एक्ट वगैरह से कुछ नहीं पूछा, तो चांसेस हैं कि अगली बार यहां से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक गेस, कि आपने लास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन देखे और ये आइडिया लगाया कि इसमें से कौन सा पॉपुलर थीम ऐसा है जिससे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है और उन्होंने नहीं पूछा पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से. तो चांसेस क्या है कि वो थीम कब पूछ लेंगे, वो अगली बार पूछ लेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड फोकस्ड रिवीजन. जब हमें पता है हम एलिमिनेट कर लेंगे थीम्स को, तो उन थीम्स पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करेंगे बिफोर एग्जाम. बट जानना तो सब है ना, गॉट इट. एंड दिस इज द रीजन टू डू कंप्लीट स्टडी. ठीक है, यही रीजन है. आधा वाधा स्टडी करके जाओगे तो पता चलेगा कुछ पता चला, कुछ नहीं पता चला, अच्छा नहीं कर पाओगे. तो दैट्स व्हाई वॉट एवर यू आर रीडिंग, रीड इट इन टोटलिटी. बिपिन, आस्क योर क्वेश्चन. सर, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सेकंड पार्ट में एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर दें कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है जो रिवोल्ट्स हुए ट्राइबल से, विल दैट बी गुड? ऑब्वियसली मैंने कहा यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है ना जो आपकी क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट देती है, स्टेट पीसीएस नहीं. ठीक है, स्टेट पीसीएस में जो सीधा पूछ रहा है ना वही लिखो. ठीक है, गाइड वाइड का आंसर पढ़ के लिखो. यूपीएससी में जितना क्रिएटिव आप बनोगे, जो स्केचेस यूज करो, डायग्राम यूज करो, है ना, फ्लो चार्ट बनाओ, पॉइंट्स को मतलब आप एक तरीके से अपने अलग तरीके से प्रेजेंट करो, यूपीएससी विल ऑलवेज रेस्पेक्ट सच काइंड ऑफ क्रिएटिविटी. ठीक है, इस एग्जाम की यही सबसे खास बात है. ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्स इन इंडिया. ठीक है, चाहे वो लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आपकी एकेडमिक्स हो, सबसे अलग है. और यहाँ पे लैंग्वेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ये मायने ही नहीं रखता. अगर आपका बहुत अच्छा लैंग्वेज भी है, डोंट राइट द फुल सेंटेंस. ये भाषा का एग्जाम नहीं है, इट्स नॉट द एग्जाम ऑफ द लैंग्वेज. मैं बार बार कहता हूँ, क्लासेस में पढ़ाने के दौरान भी कहता हूँ कि एज अ टीचर व्हेन आई टीच, मेरा फोकस क्या होता है, मेरे आर एन टैगोर के आइडिया से बड़ा इंस्पायर है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो डाटा ट्रांसफर हो जाए. जैसे आफ्टर 2 आवर्स ऑफ क्लास मेरे स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है. यू आर एबल टू टीच यू समथिंग, किसी को इस टॉपिक पे आप पढ़ा सको, तभी तो मैं मानूंगा कि डाटा ट्रांसफर हुआ. ठीक है, और पता चले 2 घंटे की क्लास खत्म होने के बाद मैं सवाल पूछूं तो आपको कि मैं नोट्स रिवाइज करके बताऊंगा, स्लाइड में एक बार रिवाइज करूंगा तब बताऊंगा, वो स्टडी है ही नहीं. क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट आवर थॉट्स, हाउ वी आर, ओके, ग्रूमिंग आवर थॉट्स. डे बाय डे यू आर एडिंग इंफॉर्मेशंस भी एक बार में ऐड थोड़ी ना हो जाएगी, बताओ, एक बार में नहीं हो जाएगी. आप याद करोगे, फैक्ट भूलोगे, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, इससे घबराना नहीं है. 10 बार याद करोगे, 10 बार भूलेगा, इससे भी नहीं घबराना है. बस क्या करना है, अपना काम क्या है, बार बार पढ़ना, पढ़ना और बोलना, बस उसी में सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, मेरी बात समझ गया. पढ़ोगे और भूलोगे, ये होगा. कई बार ऐसा लगेगा जैसे पूरा पढ़ा पूरा भूल गया. ठीक है, बट क्या होगा, एग्जाम में वो काम आएगा आपके. ठीक है, तो हिम्मत बनानी है और पढ़ना है. ठीक है, उस प्रैक्टिस में खुद को रखना है. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है. कभी भी ज्यादा घंटे भी नहीं पढ़ने हैं, नहीं तो क्या होता है, हम एक दिन में 14 आवर्स पढ़े तो 4 और 5 डेज में हम ड्रेन हो जाते हैं. फिर उसके बाद जो हॉलीडे का सिलसिला चलता है वो 1 मंथ तक चलता है. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, कुछ एक आवर्स पढ़ो, फोकस्ड रहो. तो दिस पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू एंटर इनटू व्हाट, कोर्स ऑफ इवेंट्स इन रिवोल्ट ऑफ 1857. कि हुआ क्या था. जैसे आपने बैरकपुर की बात कही, फिर मेरठ में क्या हुआ, फिर सिपाही मेरठ से दिल्ली कैसे पहुंचे, फिर दिल्ली के बाद
है ना, इंडिया के किन किन स्टेट्स में रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक्सपेंशन हुआ, कौन कौन से रीजनल लीडर्स थे, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, दिस ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये सब कुछ हमें समझने की जरूरत है। मेरी बात समझ गया ना? ओके, नाउ दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। कोर्स, राइट दिस, course of events during revolt of 1857. Now we are going to discuss this course of events during revolt of 1857. ठीक है, course of events during revolt of 1857. क्लियर? तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इस टॉपिक को स्टार्ट कर सके, बट यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी कर करके आना है। राइट दिस सेल्फ स्टडी पार्ट। क्या सेल्फ स्टडी करके आओगे? सेल्फ स्टडी यू विल डू व्हाट? क्लास 8 एनसीईआरटी, राइट, class 8 NCERT and class 12th NCERT, class 12th NCERT विपान चंद्रा, विपान चंद्रा, ठीक है, विपान चंद्रा। क्या करोगे? यू विल रीड द चैप्टर एंड विल डू व्हाट? एक हाइलाइटर ले लेना है एंड यू विल हाईलाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये करके आना है, ठीक है ना? रेड दिस, रीड द चैप्टर, read the chapter and with the help of a highlighter highlight important facts and informations only। केवल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन हाईलाइट करोगे, ठीक है ना? जैसे झांसी की रानी, नाना साहब, कुछ ऐसा फैक्ट आता है तो उसको हाईलाइट करोगे। दिस यू विल डू एंड इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दिस टॉपिक, इसको करेंगे, ठीक है? गॉट इट? इसके बाद एक टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, उसको भी डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना? तो कल होपफुली 2 टॉपिक्स विल बी कवर्ड, course of events, okay, and the second will be administrative changes after this revolt of 1857. Is it clear? ठीक है, चलिए। और वो जो ट्राइबल वाला क्वेश्चन है उसको लिखना है, ठीक है ना? 2023 का क्वेश्चन है, लिखोगे। और एक और काम करना, उसमें ट्राइबल्स की जगह पीजेंट वर्ड लगा देना और एक और नया क्वेश्चन फ्रेम कर लेना। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? लुक एट द क्वेश्चन, फ्रेम अ न्यू क्वेश्चन। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन इंडिया? इसकी जगह क्या लगाओ? पीजेंट्स इन इंडिया। एंड व्हाट वाज द पीजेंट रेस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन? नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन द सेम मॉडल, यू विल राइट एंड विल शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपका ग्रुप है उसमें आप शेयर करना, ठीक है ना? चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सर एक क्वेश्चन था केवाईक्यू का। हाँ बताइए। बुक थी दुर्गेश नंदिनी, रिटन बाय बंकिम चंद्र जी ने लिखी थी, तो उसका भी एक स्पेशल रेफरेंस है, ऐसा क्या है? देखो अभी क्या है ना कि जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय में जो भी नॉवेल्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है, आमतौर पे वहाँ पे जो भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो जब हम आनंद मठ की बात करते हैं तो आनंद मठ एक दूसरे तरह का नोवेल है, वो पूरा का पूरा पीजेंट और मतलब उन सारी चीज़ों को लेके आता है। लेकिन दुर्गेश नंदिनी जो ये नॉवेल है ना, इसका पूरा जनर ही अलग हो जाता है, ये एक रोमांस नॉवेल है, ठीक है? लेकिन कई बार उन घटनाओं में भी उस समय की सोसाइटी, पॉलिटिकल और ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, बट वो ज़्यादा क्लियरली कहाँ विजिबल है? आनंद मठ में। मेरी बात समझ गया ना? हाँ, आनंद मठ में वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, इसीलिए आप देखोगे क्वेश्चन आमतौर पे आनंद मठ, जहां पे भी आप रिवोल्ट और रिवेलियन पढ़ोगे तो आनंद मठ आता है, दुर्गेश नंदिनी नहीं आता है, ठीक है ना? गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन एएमसी से रिलेटेड है। हम्म जैसे हमको लेक्चर की शुरुआत में देखा कि टू क्रॉसिंग द सेम वाज नॉट गुड टू आवर कस्टमर्स, like to crossing the sea. If someone does that, so discrimination was started against that friend who is working into the British Indian Army. So, but into the ancient or into the medieval time, ancient medieval time, we see the Chola, where they were the masters into the sea related things like naval things. ठीक है, So their attitude was quite stronger, and but the same time they were also the patronizer religion. So so in that time why it was not considered as to be decorating food with society? देखो मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो, है ना? आप कह रहे हो कि एक तरफ हम
चोलास देखते हैं 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, एक मेरीटाइम पावर के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे 18th सेंचुरी में हैं और हम ये देख रहे हैं कि भाई इंडियन सोल्जर्स का ये है कि भाई क्रॉसिंग द ओशंस इज नॉट कंसीडर्ड गुड, है ना। ये कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो देखो व्हेन यू लुक एट द नेचर ऑफ रिलीजन, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एंड दक्कन रीजन, जो हमने एंशिएंट मिडिवल कल्चर की बुक में भी पढ़ी है कि ब्राह्मणिज्म धीरे धीरे वाया नॉर्थ, दक्कन और कहाँ पहुंचेगा, साउथ इंडिया में पहुंचेगा। ध्यान से समझना इस बात को। ब्राह्मणिज्म साउथ इंडिया में गया, है ना, तो फोर वर्ना स्ट्रक्चर एज इट इज साउथ इंडिया में नहीं गया, नहीं गया ना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे दो क्लास डोमिनेंट है, एक है ब्राह्मण, दूसरा क्या है, शूद्रास, ठीक है ना। तो फोर वर्ना स्ट्रक्चर एज इट इज तो डोमिनेट नहीं हो रहा है ना, है ना। तो देखो जब ऑर्थोडॉक्सी की बात होगी, रिलीजियस थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स की बात होगी, जो हिंदू सोसाइटी रिफॉर्म शुरू हुए, वो रिफॉर्म सबसे ज्यादा पावरफुल किस एरिया में थे, बंगाल रीजन में थे। और बंगाल नॉर्थ में आ गया, साउथ में तो है नहीं, है ना। यानी कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स स्ट्रक्चर जो है वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल किस एरिया में था, नॉर्थ में था, ठीक है। ज्यादा एविडेंसेस कस्टम ऑफ सती के कहाँ से मिलते हैं, नॉर्थ से या साउथ से, नॉर्थ से मिलते हैं। मेरी बात समझ गया ना। तो वो ऑर्थोडॉक्सी लेवल जो है ना वो ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। मेरी बात समझ गया ना। सो यू विल फाइंड देयर इज डिफरेंसेस इन द लेवल्स, ठीक है। नॉर्थ में भी बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द ऑल आर कंसीडरिंग दैट द क्रॉसिंग नॉवेल्स विल करप्ट देयर रिलीजन, ठीक है। ये कुछ एक ग्रुप्स में है, आमतौर पे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वहीं पे देखो कई सारे इंडियन इलिटिस्ट क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो इकोनॉमिक क्रिटिक हैं, दे आर फ्रिक्वेंटली विजिटिंग अब्रॉड, वहां से वो एजुकेशन पा रहे हैं, है ना। तो ये आमतौर पे हो रहा है। सोल्जर्स किस फैमिली से जा रहे हैं, पीजेंट क्लास से जा रहे हैं। पीजेंट क्लास को किस में हम रखेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है, कि उस क्लास में थोड़ी सी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा होती है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है, गॉट इट, ओके। दिस वाज वन फैक्टर, एक फैक्टर था, ठीक है, 1857 रिवोल्ट में। इट्स नॉट रिलेटेड टू ऑल सोल्जर्स बट यस इट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ सम ऑफ द सोल्जर्स, वो इस बात को अपोज करते थे, ठीक है ना, गॉट इट। एनी अदर क्वेश्चन। एक्चुअली एक्चुअली आकाश, एक्चुअली आई हाँ आई थॉट दैट जो रेगुलर क्लासेस होती है ना, है ना, इसमें जैसे ही मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे बात करने लगूंगा, सोसाइटी पे बात करूंगा, रिलीजन पे बात करूंगा, तो मेन चीज तो छूट जाएगी, पॉलिटिकल। और लोगों के अंदर कई सालों से पढ़ते पढ़ते ऐसा एक सेंटिमेंट आ चुका है कि अगर मैं मौर्यन एम्पायर बताऊं, है ना, और उसमें मतलब दो बिंदुसार को ना बताऊं और इन सारे रूलर्स को ना बताऊं, तो उनको लगेगा ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है। अगर मैं सीधा स्लेवरी बता दूं और कंडीशन ऑफ वुमेन बता दूं तो इसके लिए एक दूसरा पैरेलल प्रोग्राम करना पड़ेगा। वो पैरेलल प्रोग्राम क्या है, क्लासेस अपनी जगह है, और दिस इज ऑल्सो ट्रू कि फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हमें पता होना ही चाहिए, नहीं तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे सोसाइटी और इकोनॉमी की हिस्ट्री को, ठीक है। तो उसका तरीका यही हो सकता है कि नैरेटिव फॉर्म में इन इश्यूज पे डिस्कस किया जाए, बात किया जाए, ठीक है। जैसे आप हाफ एन आवर का टीवी शो देखते हो, 1 आवर का टीवी शो देखते हो, उस तरह से उन क्लासेस को देखो और उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू और विल इनेबल यू, आपकी जो एबिलिटी है स्मार्ट गेस करने की, वो पहले से बेहतर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। तो उसके लिए थोड़े इस तरह के लेक्चर्स चाहिए, है ना। तो अब थोड़ा सा, चूंकि जब जब टाइम मिलेगा ना, तो जब भी मैं ऐसे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा या कभी अकेले भी रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं रिकॉर्डिंग्स की लिंक शेयर कर दूंगा और वैसे भी ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। तो अगर आप लोग लाइव अटेंड करना चाहते हो तो कर लेना, तो वहाँ आपके दिमाग में जो डाउट्स होंगे वो लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आप पूछ लेना। एंड ऑल दिस विल हैपन ग्रेजुअली, अचानक नहीं हो जाएगा, ठीक है। इधर चूंकि 2 मॉड्यूल में कंटिन्यू किया हूँ, तो कुछ बर्डन इधर से जब रिलैक्स होगा ना, लाइक मॉडर्न और वर्ल्ड जब हम फिनिश कर लेंगे, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 आवर्स हमेरा हमेशा फ्री होगा, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, गॉट इट। तो मुझे लगता है कि ये 1 मंथ का और है, तो 1 मंथ में थोड़ा सा बर्डन रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद AMC और आर्ट एंड कल्चर हम कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा बर्डन और रिलैक्स हो जाएगा और फिर हम इंडिपेंडेंट तरीके से टॉपिक्स पे डिस्कस करने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये केवल मान के चलो कि और 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स मैक्सिमम लगने वाला है। तो ऑल द कोर्सेज विल बी रिकॉर्डेड, ओके, और उसके बाद आई विल बी फ्रीली इंटरेक्टिंग ऑन ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है ना, गॉट इट। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
Welcome. थैंक यू सर। Welcome.